Thank you very much, all the devotees, for attending today's session. And it is so I welcome everyone for the session. Topic is time management. So my screen is visible to everyone. So everyone is able to see. Okay. So as we all know that time management is very important in everyone's life, right? Because if you don't able to manage the time, then whole day pass and we feel that we don't have done anything, right? लगता है कि जैसे पूरा दिन पार हो गया, we have not done anything. Not like we plan for study. Yeah, I have to study for 6 hours today, but I don't have any planning that when I will study, what is the mode of my study, what else activities, what others activity I will do. Suppose I thought that okay, let's say afternoon I will study. Then afternoon suddenly one friend called and we talked for 2 hours, for long 2 hours, and then we know that we feel that it was my study time, but I waste everything. So that's why it is very important to understand that how we could manage our time, right? Because if we can manage our time, because time is very short. Chanakya Pandit says that you can buy anything with the money, right? If you want a gold coin, you can purchase the gold coin with money. If you want anything to eat nicely, then you can purchase the eatable with money. But suppose currently what is the time? 6:41 means 6:40 p.m. already passed. Now if you spend crores of rupees, will you able to get the time 6:40 back in your life? 24 hours, but that another day. It is not that 23rd of April 2022 6:40 p.m. will never come. Chanakya Pandit कहते हैं कि if we spend crores of gold coins, then also we cannot purchase a second of time which just passed away. So that's why it is very important to understand the importance of time management, how we can do time management, how we categorize things as per the priority, which is high priority, which is less priority. Because time is 24 hours, right? We all have 24 hours in our hand, and in these 24 hours we can do some level of work, right? Because suppose you have 40 activities to do in a day, and each activity requires 1 hour. Then in a day, will you able to do all 40 activities? Not possible. Then how many work you can do maximum? 15 or 16. Suppose 8 hours will, then how much is remaining? 16 hours. 40 each 1 hour. Then how you will select that which 60 tasks you will do by prioritize? By understanding the importance of that task is more important or task is less important. Now suppose you selected 16 tasks. These 16 tasks I will do in my day. Now when you start your day, now you have 16 works in your quota which you have to do. But if you don't plan your day, then you at the end of your day you can see that only 2 or 3 tasks has completed. Rest all are pending. Because many interruptions will come. And you have to understand that what are the interruptions which will come. Then only you can mitigate the interruptions, right? Suppose, what are the interruptions? Suppose some guest suddenly come. Then you have to attend the guest, you have to talk with the guest, or suddenly some friend call, this, that, or many interruptions can come. So we have to understand the difficulties, understand the threats to complete my goal. So these are the all which is the subject of discussion in today's class. So as you know that the founder Acharya of ISKCON, International Society of Krishna Consciousness, is Srila Prabhupada. Srila Prabhupada, he was 70 years old and he visited whole world 14 times. And not only visited the whole world, what he has done, he had preached everyone, like old people, youths, grihasthas,
and students he preached. Then he talked with the, like previously Prabhupada used to write email letters because there was no email facility previously. So he written letter and recording. He given so many lectures, he written books. So Prabhupada जी को आप देख सकते हैं कि उनके पास भी टाइम 24 आवर्स a day ही था और वो एक दिन में कितना काम करते थे. How it is possible? By managing the time. Okay, now moving forward with the PPTs. So the first thing is, have you ever faced any of the following situation? So I want your answer. Please read. I need more time. I want to enjoy my life more. I am always running around. I never have time for myself. तो आपने से की मेरे को और थोड़ा टाइम होने से अच्छा होता, राइट कि अगर और थोड़ा सा एंजॉय कर सकते थे और थोड़ा अच्छा था. बहुत समय हम लोग क्या करते हैं जब क्रिकेट खेलने जाते हैं, सबने क्रिकेट खेला है, अभी लगता है कि कोई बहुत एंथू है कि आज हम बहुत रन करेंगे और वो अगर एक बॉल पे या दो बॉल पे आउट हो जाता है तो उसको लगता है कि और एक बार काश मेरा बैटिंग आए और एक मैच हो, पर देखते हैं शाम हो गया है और मैच होगा ही नहीं. तब उसको लगता है इस और थोड़ा अगर हम एंजॉय कर पाते और थोड़ा खेल पाते. और ऐसा भी बहुत समय लगता है कि अरे हम तो इतना काम कर रहे हैं, ये काम है वो काम है, मेरे खुद के लिए तो मेरे पास टाइम ही नहीं है. लगता है ना, जैसे इतना हम लोग बिजी हो जाते हैं अलग अलग काम में, ये करना वो करना. जैसे लोग वॉइस में रहते हैं, अलग अलग सेवा में बिजी हो जाते हैं. जैसे कोई प्लान करते हैं कि आज हम प्रभुपाद का बुक रीडिंग करेंगे थोड़ा, जैसे हम प्लान करते हैं कि अरे बहुत दिन से प्रभुपाद का बुक रीडिंग नहीं हो रहा है तो कल हम 30 मिनट्स प्रभुपाद का बुक रीडिंग करेंगे. पर हमारा जो प्लान है वो फिक्स नहीं है, उतना रिजिड नहीं है. तो हम क्या करते हैं, अगले दिन जब होता है अलग अलग सेवा में इन्वॉल्व हो जाते हैं, फिर रात को सोते वक्त याद आता है अरे प्रभुपाद का बुक आज रीडिंग हुआ ही नहीं, अब मेरा बॉडी भी अभी थक गया, अभी पढ़ने का एंथू भी मेरे पास नहीं है. सो इन दिस वे वी लूज द टाइम. उसका क्या, माय फ्रेंड्स एंड फैमिली वांट मोर ऑफ मी बट हाउ डू आई गिव इट टू देम. I always in crisis because I postpone, but I postpone because I am always in crisis. तो इसका मतलब क्या है कि जैसे बहुत समय कुछ काम रहता है, जैसे सोचिए एक एग्जांपल देते हैं, जैसे हम लोग कपड़ा धोना है, कल सुबह उठ के फ्रेश क्लोथ्स में भगवान के सामने मंगल आरती होता है, चैंटिंग होता है, तो हम लोग क्या सोचते हैं कि सब फ्रेश कपड़ा में आए. पर क्या होता है, जैसे अभी हम शाम दोपहर का टाइम है, कपड़ा धोने का टाइम है, सॉरी कपड़ा धो के सुखाने का टाइम है, हम लोग सो रहे हैं, मोबाइल में थोड़ा गेम खेल रहे हैं, कीर्तन कुछ सुन रहे हैं, गाना सुन रहे हैं. टाइम है कि कपड़ा धोए, पर अंदर से एनर्जी नहीं आ रहा, ठीक है थोड़ा देर धोएंगे, थोड़ा देर बाद धोएंगे, थोड़ा देर बाद धोएंगे. पोस्टपोन कर रहे 2 बजे धोने था, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, फिर रात को 10 बजेगा, तब जब सोने का टाइम हो गया तब ऐसा सिचुएशन आ गया अब आपको धोना ही पड़ेगा. तब आप क्या होगा, सोने के टाइम में कपड़ा धो रहे हैं, कपड़ा धो के फिर सुखा रहे, सुबह लेट उठ रहे हैं. तो दिस आर लाइक पोस्टपोनिंग. तो ये सब अगर ये सब टाइम मैनेजमेंट का फ्लॉज है, अगर मैनेज अच्छा से नहीं करेंगे तो ऐसे करके चलते रहेगा. नेक्स्ट ये सिचुएशन देखिए, हैव यू एवर फेस्ड एनी ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, देयर्स टू मच स्ट्रेस, देयर टू मच टू डू एंड इट्स ऑल गुड, हाउ डू आई चूज, इफ वर्किंग हार्डर स्मार्टर एंड फास्टर वोंट सॉल्व इट, व्हाट विल. लगता है ना ऐसे कि अरे बहुत सारा रूटीन, बहुत कुछ करना है मेरे पास. जैसे बहुत समय हमारा जो लिस्ट रहता है करने का, व्हाट टू डू, जैसे सेमेस्टर के पहले सोचिए, सेमेस्टर के पहले लगता है ना अरे बहुत कुछ पढ़ने को है, ये भी पढ़ना है, वो भी पढ़ना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी पढ़ना है, बड़ा क्वेश्चन भी पढ़ना है, उसका प्रैक्टिकल से भी पूछ सकता है, जो चैप्टर क्लास में पढ़ाया नहीं है वो भी पढ़ सकता है. ऐसे करने से क्या होता है, माथा में बहुत स्ट्रेस हो जाता है. फील किए आप लोग कभी कभी कि बहुत ज्यादा स्ट्रेस हो जाता है. मतलब क्या क्या पढ़ेंगे वही याद रखना मुश्किल है, जो पढ़े उसको याद रखना छोड़ दीजिए, पर क्या क्या पढ़ के जाना है एग्जाम के लिए उसका ही तो लिस्ट बनाना पड़ता है. यहाँ से पढ़ेंगे, नोट कॉपी से पढ़ेंगे, बुक से वो चैप्टर पढ़ेंगे, फ्रेंड एक सजेशन दिया था उसको पढ़ेंगे, फिर भी लगता है कि अरे 2-3 तो एग्जाम के पहले याद आता, अरे वो तो पढ़ना भूल ही गए हैं. होता है कि नहीं, एग्जाम हॉल में याद आता, अरे वहां से तो क्वेश्चन आ सकता था, तो वो तो पढ़ना ही भूल गए. तो ये क्या होता है, जितना हम लोग पोस्टपोनिंग करेंगे तो ऐसा सिचुएशन मोर एंड मोर विल कम. एंड ये जो सिचुएशन है ये कॉमन टू एवरीवन, ये ऐसा नहीं है कि कुछ पर्सन स्पेसिफिक है, ये बहुत जन के साथ ऐसा होता है, इसलिए ये ऐसा सिचुएशन हम लोग फेस करते हैं. तो अगर टाइम मैनेज अगर नहीं कर सकते हैं तो क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है, कोई पढ़िए एक जन, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है. What happens to those who do not know how to manage their time? Lose temper as service increases. Yes. Always run short of time. Accomplish very little. Do things with no planning. Overload, forgetting health, peace.
No time for relationship where reflection etc. यस, जैसे फर्स्ट पॉइंट है कि लूज टेम्पर एज सर्विस इंक्रीजेस। तो आप लोग में से कभी कोई जॉब नहीं करते हैं, तो हम जॉब करते हैं। जैसे जॉब जब करेंगे तो कैसा सिचुएशन होता है, जैसे अगर प्राइवेट कंपनी में आप लोग जॉब करेंगे तो आपका 8 घंटा पूरा आपको ओवरलोडेड आप रहेंगे 8 घंटा, ठीक है। अब 8 घंटा जैसे आपको 8 घंटा ड्यूटी करना होगा ना, तो आपको 12 घंटा का काम असाइन कर दिया जाएगा। आप जब ऑफिस घुसेंगे आपको ऐसा काम दे दिया जाएगा कि अगर आप फ्रीली काम रिलैक्स होके काम करेंगे तो 12 घंटा लगेगा खत्म करने में, है ना। आपको तो एक्सपीरियंस है। तो अगर आपको क्या लगेगा, हम 9:30 बजे जा रहे हैं, 6:30 बजे मेरे को आना है, तो आप पूरा स्पीड से काम करेंगे क्योंकि आपका लोड कितना 12 घंटा का काम है जिसको आप ऑलरेडी प्लान किए 8 घंटा में खत्म करना है। आप कर रहे हैं, फिर कोई आके बोलेगा कि सर थोड़ा ये काम भी थोड़ा कर दीजिए ना, थोड़ा ये थोड़ा देख लीजिए ना। आपको तब लगेगा अरे मेरा ऑलरेडी 12 घंटा का काम ऐसा ही नहीं जो 8 घंटा में करना है, तुम एडॉक सर्विस दे रहा है मेरे को। तो यहाँ क्या लिखा है, लूज टेम्पर एज सर्विस इंक्रीजेस। तो जैसे भी अगर टाइम मैनेज हम लोग का नहीं रहेगा तो कुछ भी एक्स्ट्रा काम आएगा ना तो हम लोग बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे। जैसे जब आप काम कर रहे हैं, आप थोड़ा फांकी मार दिए हैं, फांकी मारने से क्या हुआ, टाइम वेस्ट हो गया पर सेवा आपका वही रहा। फिर कोई बोलेगा प्रभु थोड़ा यहाँ पे थोड़ा मॉपिंग कर दीजिए ना, अरे मेरा अभी ऑलरेडी इतना सेवा है, टाइम नहीं है, मेरे को वो भी करना है, कपड़ा भी धोना है, स्नान भी करना है, फिर मेरा माला बचा हुआ है वो भी करना है। तो हचपच हो जाता है सब कुछ। तो इसलिए हम लोग टेम्पर लूज कर देते हैं। उसे ऑलवेज रन शॉर्ट ऑफ टाइम। कुछ भक्त रहते हैं जो हमेशा उनके पास टाइम का क्राइसिस रहता है। कुछ भी बोलेंगे मेरे पास समय नहीं है, तो इसका मतलब उनके पास प्लानिंग नहीं है। समय तो 24 आवर्स सबके पास ही है, कोई के पास ऐसा नहीं है 36 आवर्स है, पर उनके पास मतलब इसका मतलब प्लानिंग नहीं है। उसका मतलब अकम्प्लिश वेरी लिटिल। उनको मतलब वो कभी भी कोई को अकम्प्लिश नहीं करेंगे, मतलब ग्लोरीफाई नहीं करेंगे, ग्रेटिट्यूड फील नहीं करेंगे जिनके पास जो अपना टाइम मैनेज नहीं कर सकते। और वो हमेशा ओवरलोड रहेंगे क्योंकि वो टाइम को यूटिलाइज नहीं कर रहे, इसलिए हमेशा ओवरलोड रहेंगे। और इससे क्या होगा, वो मेटेरियल चीज में इतना बिजी हो जाएंगे कि स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करने का उसके पास समय नहीं रहता है। जैसे हम लोग बहुत जन को बोलते हैं कि आप एक माला जप करिए, तो हम लोग क्या बोलते हैं, कॉमन आंसर क्या है, टाइम नहीं है ना। नहीं, सबके पास कॉमन आंसर यही है। कोई को बोलिए कि आप थोड़ा देर स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करिए, वो बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है। आप बोलिए ठीक है आप 10 मिनट प्रैक्टिस करिए, तो वो बोलेंगे ठीक है हम 10 मिनट कोशिश करेंगे। अगले दिन पूछिए आप 10 मिनट प्रैक्टिस किए थे, टाइम नहीं मिला भैया, टाइम मेरे को नहीं मिला। तो वो इतना बिजी है कि उनके पास 10 मिनट भी स्पिरिचुअलिटी या प्रेयर के लिए टाइम नहीं है। क्या नहीं है वो 10 मिनट टाइम, बिकॉज उनके पास वो कुछ टाइम प्लान नहीं करते ना। जैसे कुछ लोग हैं वो 10 बजे बेड में सोने जाएंगे और उनको सोएंगे रात को 4 बजे, फेसबुक चलाते रहेंगे, कहाँ जा रहे हैं उनको कुछ गोल ही नहीं पता, क्योंकि उनको पता नहीं है कि कल उठ के मेरे को क्या करना है। बहुत जन होता है कि वो बोलते हैं ठीक है हम 10 बजे सो जाते हैं पर फिर बोलते हैं फेसबुक थोड़ा चलाते हैं। फिर फेसबुक ऐसा है आपको पूरा इंटरनेट में घुसा देगा, पूरा आप माया का जाल में पूरा बंद जाएंगे। ये जाएंगे उसका देखेंगे, फिर लगे अरे ये फ्रेंड तो हम पहचानते हैं, उसको घुस गए, उस फ्रेंड का भी और एक फ्रेंड को आप पहचानते हैं उधर चले गए। फिर देखे रात को 10 बजे सोने गए हैं, 2 बजे या 3 बजे गया, फिर आप से मतलब आपका 4 घंटा 5 घंटा अनप्लान, जो आपका प्लान नहीं था कि आप फेसबुक करेंगे या कुछ करेंगे, पर वो उस तरह से हमारा वेस्ट हो गया। इसलिए हमारा जब प्लान रहेगा कि हम अगर 10 बजे सोने जा रहे हैं तो हमको फिक्स रखना चाहिए कि हम 10 बजे ही सोएंगे। अगर 5 बजे उठना है 6 बजे उठना है तो हमको फिक्स रखना है, तब जाके हम लोग लाइफ में सक्सेसफुल बन पाएंगे। तो इतने बड़े बड़े लोग जो सक्सेसफुल बने हैं उन लोग ऐसे हवा में सक्सेसफुल नहीं बने हैं, है कि नहीं। जो बड़े बड़े साइंटिस्ट है या जो बड़े बड़े जो अच्छी जगह जॉब करते हैं या लाइफ में कुछ अच्छा कर रहे हैं या जो स्पिरिचुअलिटी में भी बहुत फेमस है, तो अब कोई भी सक्सेसफुल पर्सन का अगर लाइफ स्टाइल अगर देखेंगे तो उनका लाइफ स्टाइल बहुत डिसिप्लिन होता है। अनडिसिप्लिन लाइफ स्टाइल वाले लोग कभी भी कुछ भी अच्छा नहीं कर सकते हैं। आप किसी भी जन को देख लीजिए, आप हनुमान का लाइफ स्टाइल देखिए, कैसा डेडिकेशन था। हमेशा वो सोचते थे कि कैसे मेरे को भगवान राम का सर्विस करना है, कैसे भगवान राम को प्रसन्न करना है। तो इसलिए क्या हम लोग को हमेशा गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अरे ठीक है वो भी कर देंगे, ये बोला वो भी कर देंगे, क्योंकि एक बात याद रखिएगा, आप दुनिया में सबको खुश नहीं कर सकते, है कि नहीं। बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि ये नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, ये नहीं करेंगे तो वो बुरा मान जाएगा। तो आप कुछ भी करिए, कोई ना कोई बुरा मान ही जाएगा। उससे अच्छा है आपका प्लान आप फिक्स रखिए, उसके अनुसार काम करिए, ताकि अपना लाइफ में हम लोग सक्सेसफुल कुछ बन सके। स्पेशली जिन लोग स्टूडेंट है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग के पास पूरा सेमेस्टर टाइम रहता है और पूरा सिलेबस रहता है।
100% टाइम, 100% सिलेबस। टाइम कम गया 80%, सिलेबस 100%। टाइम कम गया 60%, सिलेबस 100%। टाइम कम गया 10%, सिलेबस 100%। सेमेस्टर के पहले दिन सिलेबस 100%। सिलेबस नहीं घटा, टाइम चला गया। तो इसका मतलब क्या, हम लोग सक्सेसफुल इंसान नहीं बन सकते। हम लोग प्राउड, बहुत जन प्राउड फील करता है, अरे हम लोग तो इंजीनियर है, सेमेस्टर के पहले दिन ही हम लोग पढ़ के एग्जाम देके पास करते हैं। वी आर प्राउड ऑफ आवरसेल्फ। और उनका हालत एक बार देखिए, हम लोग कहाँ पे जॉब कर रहे हैं, कैसे सफर कर रहे हैं। और जिन लोग अच्छा से पढ़ाई करते देखिए, जिन लोग सेमेस्टर का पहला रात में पढ़ाई करते हैं, उन लोग गेट में कभी अच्छा रैंक नहीं कर पाते हैं या कैट क्रैक नहीं कर पाते हैं। किन लोग कर पाते हैं, जो बोलते हैं हम सेमेस्टर के पहले दिन पढ़ेंगे, पर वो सारा समय पढ़ते हैं, अच्छा से प्लान करते हैं, अपना अननेसेसरी टाइम वेस्टेज नहीं करते हैं। समझ रहे ना? इसलिए हम लोग को टाइम मैनेजमेंट मतलब क्या करेंगे ये जैसे जानना जरूरी है, क्या नहीं करेंगे ये जानना भी जरूरी है कि नहीं? क्या करेंगे वो जान लिए, क्या नहीं करेंगे वो तो हमको पता होना चाहिए ना। जो क्या नहीं करना चाहिए उसके पीछे हम लोग टाइम दे दिए, तो फिर तो पूरा टाइम वेस्ट हो गया। क्योंकि देखिए, जिन लोग भी कॉलेज में आए हैं, सबका एक गोल लेके आए हैं कि नहीं? मम्मी पापा का एक गोल है, सबका फ्रेंड्स का एक गोल है। कि बहुत जन बोलता है कि अरे हम तो जॉइंट एंट्रेंस में रैंक नहीं कर पाए, पर तुम तो किया है, तुम जाके कुछ अच्छा करो। अगर हम लोग कुछ अच्छा कॉलेज में पढ़ के अच्छा रैंक करके भी कुछ नहीं कर पाएंगे, तो दूसरों से हमारा डिफरेंस कुछ रहेगा नहीं, है कि नहीं? क्योंकि पीपल आर स्टिल ऐसे ही घूमते हैं बेकार की तरह। अगर हम लोग अच्छा से पढ़ाई करके भी हम लोग अगर वैसा ही रहे तो क्या फायदा है? इसलिए हम लोग को बहुत डिसिप्लिन होना चाहिए, बहुत गोल ओरिएंटेड होना चाहिए, और पूरा सक्सेस के पीछे मतलब सक्सेस को गोल बनाना चाहिए हमेशा, कि कैसे करना है, हमेशा उसके बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, अरे लैब एग्जाम है ना, हो जाएगा, क्या है, लैब ही तो है, क्या है, ये असाइनमेंट ही तो है, एग्जाम के पहले के रात में हम लोग जाग के लिख लेंगे। तो दीज आर लाइक स्पॉन्टेनियस एक्टिविटीज, इससे ज्यादा रिजल्ट हम लोग को नहीं मिलता है। देखिए, अब कुछ है कि जो हम लोग इनकरेक्टली बोलते हैं, जो एक्चुअली सही, जैसे हम लोग बोलते हैं वेयर हैज द टाइम गॉन, बोलते हैं ना, अरे पता ही नहीं कैसे समय पार हो गया, समय कहाँ से चला जाता है, इतना समय तेज भागता है ना। बहुत समय बोलते हैं ना, अरे समय लगा बहुत ज्यादा तेज भाग रहा है। एक्चुअली ये बात सही नहीं है। सही है कि अरे हम कैसे टाइम को यूज किए हैं कि नहीं। टाइम हम लोग गलत से यूज करेंगे तभी टाइम ज्यादा जल्दी भागेगा। उसके बाद है इट वाज सच ए वेस्ट ऑफ टाइम। सब अपना मोबाइल में देखिए, तो उसको करेक्ट लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? I wasted so much time. नेक्स्ट है द टाइम जस्ट फ्लू पास्ट। इसका क्या हो सकता है, बोलिए कोई? टाइम जस्ट फ्लू पास्ट मतलब बोल रहा है कि टाइम बहुत ज्यादा जल्दी भाग रहा है। लॉट ऑफ टाइम इज वेस्टिंग, यस। और कोई? तो ওটা एक्चुअली इनकरेक्ट, किंतु समय तो चले যাচ্ছে ना। टाइम क्या जा रहा है? टाइम तो अपना 24 आवर्स, घड़ी अपना जिंदगी 1992 में जैसे घड़ी चलता था, अभी भी घड़ी वैसे ही चलता है कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि घड़ी का स्पीड को टाइमर सेट कर दिया है, उसका एफिशिएंसी इंक्रीज कर दिया है। पहले 24 घंटा में 24 घंटा होता था, अभी 10 घंटा में 24 घंटा हो जा रहा है। घड़ी फिक्स है, पर फिर भी हम लोग क्यों सोचते हैं टाइम फ्लू फास्ट? इसका मतलब आई डिडंट कीप ट्रैक ऑफ माय टाइम। अब टाइम का ट्रैक ही नहीं है। ऐसा हम लोग मशगूल है, कब 2 से 4 बज गया हमको पता ही नहीं। बहुत जन बोलता है, बहुत जन सोता है सुबह 10 बजे, सो के जब उठता है उसको यही पता नहीं कि शाम है कि सुबह है। होता है कि इतना मशगूल है, इसका ट्रैक ही नहीं है टाइम का ट्रैक नहीं है ना। इसके लिए फिर वो उठ के बोलता है अरे इतना सुबह से तक शाम हो गया, टाइम बहुत जल्दी पार हो जा रहा है। तो इसका मतलब है ना, टाइम का ट्रैक नहीं रख पा रहे हैं। इसका बोलते हैं कि दे टूक अप सो मच ऑफ माय टाइम। अच्छा बोलता है, सोचिए कोई दोस्त आया आपके पास मिलने, आप उनसे बहुत गप किए, फिर वो चला गया, फिर आप बोलते अरे वो मेरा बहुत सारा टाइम खा लिया है। हम खुद उसके साथ टाइम वेस्ट किए, पर दोस्त हम लोग, इसका मतलब क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी हम लोग खुद नहीं लेना चाहते हैं। एंजॉय सब करना चाहते हैं, पर रिस्पॉन्सिबल हम नहीं होना चाहते हैं कि नहीं? जैसे सोचिए हम लोग कोई दूसरा का चीज यूज करते हैं, कुछ यूज किए सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए, पर उसका चीज खराब हो गया, तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे वो यूज कर करके उसका पुराना था, उसका चीज पहले से ही खराब था, वो टूटना ही था, आज मेरे हाथ से नहीं टूटता तो कल उसके हाथ से टूट जाता है। बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एनीथिंग, दैट्स व्हाई वी यूज इनकरेक्ट लैंग्वेज। इसका मतलब देखिए, यहाँ पे जितना भी अभी तक देखे हैं, इससे सब कुछ पता चल रहा है कि हम लोग एंजॉय हम कर रहे हैं, पर ब्लेम दूसरा के ऊपर दे रहे हैं। ही टुक माई टाइम, वो मेरा सारा टाइम ले लिया। उसका बाद वेयर हैज द डे गॉन, सारा दिन कहाँ चला गया? ऐसे करके वो सारा पॉइंट नहीं बता रही, अलग अलग है। ठीक है, आप लोग यहाँ से समझ गए थीम ना? इसका थीम समझ में आ गया कि हम लोग टाइम खुद वेस्ट करते हैं, पर ब्लेम दूसरे के ऊपर डालते हैं।
नेक्स्ट, व्हाई डू वी वांट टू लर्न टाइम मैनेजमेंट? तो बोलिए अब कोई आप लोग इसमें से बोलिए, यहाँ पे 3 पॉइंट लिखा हुआ है, इसको छोड़ के आप लोग इसमें नहीं देख के आप लोग बोलिए कि क्यों आप लोग को लगता है कि टाइम मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी है। एक एक पॉइंट करके बोलिए। हाँ आप बोलिए। If we can manage our time, we can manage anything. मैनेज एनीथिंग, ओके। तो लाइफ को इजी करने के लिए, लाइफ को इजी करने के लिए आप डिसिप्लिन बनने के लिए आप ज्यादा काम कर सकते हैं, हम ज्यादा कम टाइम में ज्यादा काम कर सकते हैं। आप बताइए। लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका, लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए अच्छा तरीका से कर सकते हैं। और आप बताइए। we can balance our material activities along with spiritual. यस, मटेरियल एक्टिविटी स्पिरिचुअल एक्टिविटी ज्यादा एक साथ कर सकते हैं। To earn more money, we work more than you are, we can earn ओके, सो अगर हम लोग ज्यादा टाइम सेव करते हैं तो ज्यादा काम कर सकते हैं, तो हम लोग ज्यादा पैसा भी कमा सकते हैं। ओके, आप लास्ट रहेगा तो अच्छा रहेगा, मींस मतलब और हम लोग ज्यादा मतलब और एफिशिएंट काम कर सकते हैं। ओके, पॉइंट में बोले थे कि who plans to fail already make a plan to fail. हाँ, He who plans to fail already make a plan to fail. यस। ऑनलाइन से कोई बात, कुछ ऑनलाइन से कोई बोलना चाहेंगे कुछ कि क्या लगता है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है? ठीक है, तो हम लोग बहुत सारा पॉइंट हम लोग सुने। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है मैनेज आवर लाइफ। अगर टाइम मैनेज करेंगे तो हमारा लाइफ मैनेज हो पाएगा। वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर, और अकम्प्लिश आवर गोल्स इफेक्टिवली, यूटिलाइज आवर टाइम एंड अदर्स टाइम। ठीक है, ये सब है कि टाइम मैनेजमेंट क्यों करना चाहिए, ये सब का कुछ कारण दिया है। आप लोग भी जो पॉइंट बताए बहुत सुंदर पॉइंट है कि हमारा और स्मार्टर वे में, और क्या अगर हम लोग स्मार्ट वे में काम करेंगे तो टाइम सेव हो सकता है। इसीलिए से ऑटोमेशन आ रहा है, हर चीज में भी ऑटोमेशन ला रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ला रहा है, क्योंकि पीपल उनको पता है कि क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है, और जितना कलयुग बढ़ेगा उतना इंसान का एज जो है घटते जाएगा, और इंसान को एंजॉय सब कुछ करना है, इसलिए इतना हायर टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं। ये वो अलग अलग तरह से अलग मतलब कितना कम समय में कितना ज्यादा एफिशिएंट हम लोग काम कर सकते हैं। Problems are caused by chaos, not organized. Organized मतलब कैसे हम लोग organized हो सकते हैं? Organization of things from keys to computer, filling, etc. Organization of to-do lists, so planning charts. Organization of people. जैसे क्या है, बहुत समय हम लोग क्या होता है, जैसे हम लोग कहीं पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे, अब गाड़ी का चाबी कहाँ रखें वही हमको पता नहीं है, वो ढूंढने में हमारा 10 मिनट चला जाता है। जब बहुत समय होता है, हम ऑफिस से आते हैं, आके हड़बड़ दड़बड़ कोई बोलता है ये कहाँ है, वो ये करो वो करो, और भूल में चाबी हम कहाँ रख देते हैं। फिर हम ऑफिस जाने का टाइम होता है, अब 10 मिनट 15 मिनट से हम चाबी ढूंढ रहे हैं, तो ये क्या है, 15 मिनट वेस्ट ऑफ टाइम है। उसी तरह से जैसे कभी कभी कुछ टू डू लिस्ट होता है, वो टू डू लिस्ट हम लोग का खो जाता है, क्या करना है नहीं करना है, तो वैसे मतलब इसलिए हम लोग ऑर्गेनाइज्ड करना चाहिए सब कुछ। जैसे कौन सा चीज कहाँ रखेंगे, जैसे बहुत समय रहता है कि कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ने का जो चीज है हम लोग कंप्यूटर में सेव किए, पर फोल्डर का नाम क्या दिए वही हम लोग को पता नहीं। अब इतना फोल्डर है, ढूंढो क्या कौन सा फोल्डर भूल गए, फिर आधा दूर चले गए, फिर वहां से आकर फिर इसको वही होता है। ऑर्गेनाइज्ड इसलिए हमारे पास ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए सब कुछ में। ऑर्गेनाइज्ड मींस सब कुछ को प्रॉपरली प्लान करके करना चाहिए। जैसे फिर हम जैसे चाबी, बहुत समय हमको प्रॉब्लम होता है, चाबी नहीं मिलता है, कभी कॉलेज का जो ऑफिस का जो आईडी रहता है, आईडी नहीं मिलता है, कभी जूता पहने जाते देखे हैं कि मोजा धोया हुआ नहीं है, धोने भूल गए हैं, तो उसके बाद हम एक प्लानिंग करते हैं कि ऑफिस से आएंगे तो एक डब्बा रखे, उसमें हम ऑफिस का जितना यूटेंसिल्स है सब रखेंगे, चाबी, कार्ड, जो चीज जरूरत होता है, ताकि ऑफिस से निकलते समय सारा चीज मेरे को एक जगह में मिल जाए। दैट इज द पार्ट ऑफ टाइम मैनेजमेंट। नहीं तो हमेशा ये ढूंढो वो ढूंढो। उसके जैसे होता है कि जैसे कैंप के टाइम में हम लोग को जाना है, कैंप आप लोग तो नए लोग हैं, उनको नहीं पता, जो पुराने लोग हैं सोचे कहीं पे हम लोग को यात्रा पे जाना है, मायापुर गए या कहीं पे घूमने गए, तो जब हम लोग पैकिंग करने जाते हैं तब हम 1 घंटा 2 घंटा चला जाता है क्या क्या पैक करना है ये सोचने के लिए, होता है कि नहीं? क्या कहीं पे आप लोग कहीं कभी घर जाते हैं या कहीं जाते हैं घूमने के लिए तो 2 घंटा लगता है कि सोचने के लिए कि क्या क्या हमको पैक करना है। सब कुछ पैक कर लिए, फिर आंख बंद के सोचते हैं क्या भूले, कुछ तो भूल रहे हैं। वो जब तक ट्रेन में नहीं चढ़ते तब तक लगता है कि कुछ तो हम लोग भूल रहे हैं।
इसलिए हम लोग क्या करते हैं, लिस्ट बना लेते हैं पहले से कि ये कहीं भी जाएंगे हम लोग, अगर यात्रा में जाएंगे तो ये सामान जरूरी है, ऐसा लिस्ट हम लोग के पास ऑलरेडी हम लोग बनाए हैं कि नहीं। तो उस लिस्ट के अनुसार भी हम लोग चेक लिस्ट करते हैं, हाँ ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए, ये ले लिए। तो दिस विल सेव लॉट्स ऑफ आवर टाइम। इसमें क्या हैपोजिटली अनऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं होना चाहिए। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा, इतना देर था आर्ट्स का सब्जेक्ट, अब हम लोग साइंस का स्टूडेंट है, तो हम लोग थोड़ा साइंटिफिक, कुछ साइंस टेक्नोलॉजी के मतलब कुछ कठिन चीज के अंदर घुसेंगे थोड़ा, ताकि लगे साइंस का स्टूडेंट है। तो ये है एक मैट्रिक्स, टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। ठीक है, आप लोग सब स्क्रीन में देखिए, जो आपके पास स्क्रीन खुला हुआ है उस स्क्रीन में आप लोग देखिए, ये है टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स। तो कैसे हम लोग को टाइम मैनेज करना चाहिए, सबके पास है, ये सबके पास रहना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, तो ये साइन थीटा कॉस थीटा हम लोग सब किए थे ना, ऑल साइन टेन कॉस, तो उसी तरह का कुछ है ये। तो राइट हैंड साइड जो है आप लोग देख सकते हैं, वो है नॉट अर्जेंट का रो, ऊपर में है इंपॉर्टेंट, लेफ्ट में है अर्जेंट और नीचे है नॉट इंपॉर्टेंट। इसका मतलब इसको ये जो क्वाड्रेंट है, ये क्वाड्रेंट क्या है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ये क्वाड्रेंट है इंपॉर्टेंट और अर्जेंट। ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट, इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट। ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। और ये जो क्वाड्रेंट है ये क्या है, नॉट अर्जेंट नॉट इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ गए, क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 4। अब आप लोग से मेरा क्वेश्चन है कि आप बताइए कि ऐसा कुछ काम को मैं एक एग्जांपल दीजिए जो नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट क्वाड्रेंट 4 पड़ता है। ऐसा कुछ काम एक एक करके आप बताइए। संडे को कहीं प्लान हो गया घूमने हमने, हाँ, तो वो अर्जेंट भी नहीं है इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी हम लोग चले जाते हैं मूवी देखना, कहीं डिस्को थिएटर में चले जाना, बहुत हम लोग नहीं जाते पर बहुत जाता है, या कहीं भी अचानक से मतलब अचानक से कुछ पता चलो क्रिकेट चले गए, तो ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है अर्जेंट भी नहीं है, ये क्वाड्रेंट 4 में है। क्वाड्रेंट में है अर्जेंट बट नॉट इंपॉर्टेंट। तो आप बताइए, इसका एग्जाम अर्जेंट है पर इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा कुछ काम। अच्छा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कीजिए, क्या है अर्जेंट है पर वॉशिंग क्लोथ करना है, अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट भी है। आइए, नहीं कुछ एक्टिविटी बताइए, एक्टिविटी। ठीक है, आप लोग एक but it's not actually not important. Cleaning करना हो अगर कुछ, cleaning urgent है। ठीक है, पहले ठीक है, आप लोग पहले इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट का एग्जांपल समझिए तो समझ में आएगा। आप बताइए कि इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। बुक रीडिंग करना इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट है, और थोड़ा प्रैक्टिकल एग्जांपल ताकि समझ में आए। बाल कटना इंपॉर्टेंट है तो अर्जेंट नहीं है, आप बोल सकते हैं एक तो। ठीक है, तो देखिए पहले क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 अगर आप लोग समझेंगे तो सब कुछ समझ। देखिए यहाँ पे क्वाड्रेंट 1 है, क्वाड्रेंट 2 है, क्वाड्रेंट 3 है, क्वाड्रेंट 4 है। तो किसी भी काम को हम लोग को हमेशा क्वाड्रेंट 2 में खत्म कर देना चाहिए। अगर क्वाड्रेंट 2 में अगर खत्म नहीं करते हैं तो वही एक्टिविटी क्वाड्रेंट 1 में आ जाएगा। जैसे हम आपको एक अच्छा से एग्जांपल बताते हैं, आप लोग सब एग्जांपल को सुनिए। सपोज आप लोग सब आइदर मेस में या वॉइस में रहते हैं। आप लोग मेस में रहते हैं, कोई मेस में रहता है, कोई वॉइस में रहता है। हर जगह कुकिंग होता है कि नहीं? कोई मासी रखता है, कोई कुक रखता है, कोई भी रखता है। तो सोचिए आप किचन इंचार्ज हैं, किचन इंचार्ज या मेस के इंचार्ज हैं। आपको इस महीना के लिए, अप्रैल के लिए मेस चलाना है। तो आपको मंगलवार को सोचिए कुक बोलता है कि भैया मैं गैस खत्म होने वाला है, अब और गैस हार्डली 2 या 3 दिन चलेगा, आप गैस का थोड़ा बुक कर दीजिए। आप बोले ठीक है हम देखते हैं। तो ये क्या है? ये इम्पोर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, क्योंकि आपके पास 3 दिन टाइम है। पर इम्पोर्टेंट क्यों है अब समझ में आएगा।
आप क्या किया, आप नेग्लेक्ट कर दिए, अरे करेंगे, ठीक है ठीक है, अभी तो टाइम है। अगले दिन हो गया, अगले दिन भी आप बोले अरे हाँ करेंगे करेंगे, फिर अचानक से उस दिन जब कॉलेज गए तब पता चला कि अरे परसों तो भाईवा है। अचानक से आप लोगों को डिक्लेयर हुआ, सर बोले कि परसों भाईवा लेंगे। सरप्राइज टेस्ट होता है ना, सरप्राइज टेस्ट कभी कभी होता है, परसों सरप्राइज टेस्ट होगा आप लोगों का। कल आप सारा दिन पढ़ाई किए, दिन में पढ़ रहे, रात में पढ़ रहे, शाम को पढ़ रहे हैं, लेक्चर से इससे पूछ रहे हैं, दोस्त से पूछ रहे हैं। कुक तो आपको 3 दिन पहले बोल चुका है, अब कुक भी कुक की तरह है, वो क्या जेंटल रिमाइंडर नहीं देगा आपको। एक बार बोल दिया, हमने एक बार बोल दिया है, आप कर, मेरा उतना ड्यूटी नहीं है, एक बार बोलना ड्यूटी है, बोल दिए। अब खाना चढ़ा दिए, सब्जी आधा कुक हुआ, आधा पका सब्जी, चावल का पानी गर्म हुआ और गैस खत्म हो गया। समझ में आ रहा है एग्जाम्पल? अभी क्या सिचुएशन हो गया है, आपका सब्जी आधा कुक हुआ है, चावल आधा कुक हुआ है, आपको सुबह खा के कॉलेज जाना है और गैस नहीं है। इसको फोन कर, भाई तुम्हारे मेस में एक एक्स्ट्रा सिलेंडर होगा क्या? अरे नहीं, मेरा तो एक ही है, उसमें भी खाना बन रहा है। ठीक है देखो किसके पास कौन खाली है, देखो किसके पास 2 सिलेंडर है। हड़बड़ धड़बड़ अफरा तफरी मच गया, तब वो किस में आ गया, अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में आ गया। क्योंकि अगर हम लोग इसी तरह से अगर कोई चीज इम्पोर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है, उसको अगर प्रायोरिटी नहीं देंगे तो वो किस में आ जाएगा, इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में आ जाएगा। और इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में जब आ जाएगा तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रेस बढ़ाएगा, एंजाइटी बढ़ाएगा कि नहीं। आपको तुरंत अभी गैस मंगवाना है, तुरंत मतलब उसको काम फिट करना है। तो उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं कि जैसे सेमेस्टर का एग्जाम है, तो सेम एग्जांपल है। आप लोग सेमेस्टर जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको पता है कि सेमेस्टर में अच्छा मार्क्स लाना अर्जेंट इम्पोर्टेंट है और अच्छा से पढ़ाई करना भी इम्पोर्टेंट है। पर एकदम 12 घंटा पढ़ना स्टार्टिंग में उतना अर्जेंट नहीं है, आप धीरे धीरे पढ़ाई कीजिए, अर्जेंट नहीं है। पर अगर उसको अगर आप इग्नोर करेंगे, क्वाड्रेंट 2 में कोई काम अगर नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, लास्ट में सेमेस्टर में पास करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट भी हो जाएगा, अर्जेंट भी हो तुरंत। मतलब आपका हेल्थ खराब है तब आदमी क्या होता है, आपको बुखार आ रहा है, सर दुख रहा है, फिर भी आपको पढ़ाई करना ही पड़ेगा क्योंकि आप क्वाड्रेंट 2 में उसको नहीं किए। पर जो क्वाड्रेंट 2 में पढ़ाई कर लिया है वो क्वाड्रेंट 1 में आके क्या करेगा, उसका तबियत खराब है तो वो क्या करेगा, वो थोड़ा रेस्ट लेगा, रिलैक्स करेगा, क्योंकि उसका पढ़ाई सब हो चुका है। इसलिए हम लोग को कोई भी चीज क्वाड्रेंट 2 इज द बेस्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है आप सबको कि इसलिए 4 क्वाड्रेंट, इसलिए हम लोग को सोचिए जो प्लानिंग रहेगा तो हम लोग को पहले सोचना चाहिए कि कौन सा काम हमारा इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट है, कौन सा काम है इंपॉर्टेंट है अर्जेंट है, कौन सा काम है अर्जेंट है नॉट इंपॉर्टेंट है, और कौन सा काम है नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट है। तो अब जब 40 जो क्लास का स्टार्टिंग में हम आप लोग को क्या बताए थे, आपके पास 40 काम है, उसमें से 16 आपको सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहले आप लोग किसको एलिमिनेट करेंगे, जो नॉट इंपॉर्टेंट है और नॉट अर्जेंट है। उसको पहले आइडेंटिफाई करना, इसलिए हम लोग को पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन सा अर्जेंट नहीं है। और सबसे ये 4th वाला ब्लॉक का जो काम है वो क्या 5 ब्लॉक में आ सकते हैं? नहीं, कैसे आ सकता है, नॉट इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट मतलब उसको हम लोग नेग्लेक्ट, उसको मतलब रखेंगे ही नहीं, उसको रखेंगे ही नहीं, क्योंकि वी हैव सो मेनी थिंग्स टू डू इन आवर लाइफ। तो उसको हम लोग एकदम लास्ट प्रायोरिटी देंगे कि ठीक है सब कुछ काम हो जाएगा तो हम 1 घंटा थोड़ा जॉगिंग में चले जाएंगे, या मेरा सारा पढ़ाई हो जाएगा। जैसे बहुत समय होता है ना, हम लोग रात को खाने के बाद थोड़ा टहलने जाते हैं, ठीक है मेरा पढ़ाई हो गया, असाइनमेंट लिखना हो गया, घर में फोन करना हो गया, दोस्तों से बात करना हो गया, थोड़ा सब कुछ हो गया तो ठीक है आप चलो आधा घंटा थोड़ा घूम के आते हैं, बट दैट इज लेस प्रायोरिटी। मोस्ट प्रायोरिटी इज इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट। ठीक है, जो एक्सरसाइज होता है, जो नॉर्मल फिजिकल एक्सरसाइज होता है, वो भी तो आपका इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट में आता है। नहीं वो हाँ वो इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट है, उसको आपका धीरे धीरे हर दिन थोड़ा करता है तो उसको फिर इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो इंपॉर्टेंट अर्जेंट हो जाएगा। डॉक्टर बोलेगा जिस दिन उसी दिन इंपॉर्टेंट अर्जेंट हो जाएगा। तब उसको कुछ हो ना हो, सुबह उठ के जैसे डायबिटीज होने से पहले वजन को बोलता है कि आप थोड़ा थोड़ा सुबह सुबह जल्दी उठिए, तो सुबह चलिए, ज्यादा जंक फूड मत खाइए, ज्यादा नॉनवेज एकदम मत खाइए, तो वो सुनता नहीं है। तब भी वो सब कुछ खाएगा, पूरा सुबह उठ के कभी एक पाँव भी नहीं चलेगा। हमारे ऑफिस में कुछ जन है जो ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर जाएगा तब भी लिफ्ट से जाएगा, फर्स्ट फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर आएगा तब भी लिफ्ट से ही आएगा, चाहे उसको 10 मिनट लिफ्ट के सामने खड़ा क्यों ना होना पड़े। उसी को जब डायबिटीज हो जाता है तो वो 5 तल्ला भी पैदल चल के जाता है, 5 तल्ला पैदल चल के आता है। क्यों, अगर भाई पहले थोड़ा कर लेते तो आपको डायबिटीज ही नहीं होता ना। तो इसलिए हम लोग को हमेशा इंपॉर्टेंट नॉट अर्जेंट स्टेज में ही काम को करना चाहिए। जो अर्जेंट अभी नहीं है पर इंपॉर्टेंट है कि हमारा हेल्थ को अच्छा रखना, अर्जेंट नहीं है। जैसे हम लोग बोलते हैं कि आप लोग थोड़ा करेला खाइए या थोड़ा तीता चीज खाइए,
खाने के लिए नीम खाइए, थोड़ा नीम का पत्ता थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए, ब्लड प्यूरिफाई करता है। तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। आप अगर आज नीम नहीं खाए कल खाएंगे तब भी चलेगा, ठीक है। या आप कुछ सोचिए, कुछ हल्का फुल्का, जैसे जिसको कोविड के समय बोला जाता था गिलोई खाइए थोड़ा थोड़ा, तो ऐसा नहीं कि आप आज अगर गिलोई नहीं खाएंगे कल खाएंगे तो कुछ बड़ा कुछ लॉस हो जाएगा, नहीं। ये इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है। आप आज नहीं खा पाए कल खाइए, परसों खाइए, पर एक बार आपका अगर हेल्थ खराब हो गया तब वो क्या हो जाएगा, इंपॉर्टेंट अर्जेंट में आ जाएगा, है कि नहीं। तब आपको खाना ही पड़ेगा, तब आपका कुछ और ऑप्शन नहीं है, क्योंकि डॉक्टर ने बोल दिया है तब आपको खाना ही पड़ेगा दवा। जैसे क्वाड्रेंट का एग्जांपल दे रहे हैं, देखिए क्वाड्रेंट 1 में जैसे मेडिटेशन का फोटो देख सकते हैं। तो ये जो मेडिटेशन है, प्रेयर है। प्रेयर क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि भगवान का नाम चैंटिंग करना चाहिए, या भगवान का प्रे करना चाहिए, क्लास में आना चाहिए, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, सुबह सुबह उठ के भगवान के बारे में थोड़ा रिमेम्बरेंस करना चाहिए, क्योंकि लॉर्ड इज अल्टीमेटली लॉर्ड इज सप्लाइंग एवरीथिंग। कृष्ण ही बोल रहे हैं कि सर्व योनिषु कौन्तेय अहम बीज प्रदोपिता, हम सब लिविंग एंटिटी के परम पिता है। तो इसलिए भगवान के लिए हमको थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि नहीं। भगवान के बारे में रिमेम्बर करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान के जो भक्त है उनसे मिलना, ये इम्पोर्टेंट है। और ये इतना अर्जेंट हम लोग को फील नहीं भी हो सकता है कि ठीक है आज अगर हम एसोसिएशन नहीं जा पाए कल हम जरूर जाएंगे, पर ये सब चीज हम लोग को कंटिन्यूअसली सोचना चाहिए कैसे हम करेंगे इम्पोर्टेंट अर्जेंट। तो आप लोगों को कुछ टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स और डिटेल्स सर अपना मोबाइल में देखते रहिए, यहाँ पे आपको और डिटेल्स में इसको समझना है हम लोग, ठीक है। क्वाड्रेंट 1 ये व्हाट्सएप पे ग्रुप में आ गया, देखिए अब एक एक करके सब अपना खोल लीजिए, हाँ वीडियो खोल लीजिए, सब देख रहे हैं। देखिए क्वाड्रेंट 1 में क्या क्या है, क्राइसिस, डेडलाइन ड्रिवन प्रोजेक्ट्स, प्रेसिंग प्रॉब्लम्स, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, हार्ट अटैक, अर्जेंट टाइम बाउंड ऑर्डर्स फॉर सप्लाई, मीटिंग्स। जैसे क्या होता है, जैसे जब आप लोग ऑफिस में काम करेंगे ना, तो आप लोग को अभी आप लोग को एक्सपीरियंस नहीं है क्योंकि आप लोग अभी स्टूडेंट है। ऑफिस में जब काम करेंगे अचानक से सोचिए आपका 9:30 से 6:30 ड्यूटी है, ठीक है। तो 3:30 बजे क्लाइंट फोन करके बोलेगा आपको या मेल करेगा कि मेरे को ये जो आप लोग सोचिए आप एक प्लानिंग किए हैं कि 16 घंटा का काम है, आप सोचे कि हम ठीक है सोमवार और मंगलवार 2 दिन में काम कंप्लीट कर देंगे। शनिवार को आपको काम मिल गया था, ये शुक्रवार को काम मिल गया था, शुक्रवार आप काम देख लिए कि इतना 16 घंटा का काम है, ये काम करने में मेरे को 16 घंटा लगेगा, तो आप कैलकुलेट किए कि सोमवार और मंगलवार 2 दिन में हम काम कर देंगे, ठीक है। तब सोमवार मंगलवार के लिए काम रखे, शुक्रवार आराम से हॉलीडे है, वीकेंड में आप चले गए, सोमवार को आके काम शुरू किए। सोमवार को जब 5 घंटे का काम किए तब क्लाइंट आपको मेल करता है कि आपको जो हम काम भेजे थे वो आप मेरे को आज ही रिटर्न चाहिए, अभी आपको यानी हाँ आज को रात में 9 बजे के अंदर मेरे को देना है। तो ये किस में आ गया है, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में आ गया है। पहले क्या था, इंपॉर्टेंट है मतलब करना है, पर नॉट अर्जेंट मतलब क्या, अभी तुरंत नहीं करना है, धीरे धीरे हम करेंगे। पर जब क्लाइंट बोल दिया कि मेरे को अभी फाइल चाहिए, मेरे को अभी वो काम करके दो, तो किस में आ गया, वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में आ गया, मेरे को तुरंत करके देना है, ठीक है। उसी तरह से जैसे अर्जेंट मीटिंग हो गया कुछ, ये सब इंपॉर्टेंट और अर्जेंट में आ गया कि तुरंत। जैसे सोचिए आप लोग रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, आप लोग मेस में रहते हैं, तो मेस का जो मैनेजर है वो अचानक से बोला कि अरे बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, अभी 15 मिनट में हम लोग को मीटिंग करना है, आप लोग सब तुरंत मीटिंग में आ जाइए, बहुत इंपॉर्टेंट इशू है उसको डिस्कस करना है। तो ये क्या हो गया, इंपॉर्टेंट और अर्जेंट हो गया। आपको तुरंत इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि इशू सॉल्व करना है, और अर्जेंट क्या है क्योंकि अभी आपको मीटिंग अटेंड करना है। तो क्वाड्रेंट 2 में देखिए इंपॉर्टेंट और नॉट अर्जेंट, ये सब क्या होता है, जैसे प्लानिंग, सेल्फ डेवलपमेंट, प्रिवेंशन, पीसी एक्टिविटीज, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ये सब क्या है, इंपॉर्टेंट है पर नॉट अर्जेंट। जैसे सेल्फ डेवलपमेंट, जैसे आप लोग को सोचिए तो अच्छा इंजीनियर बनना है, या बस जैसे बहुत जन का हो सकता है कि प्लानिंग है कि मेरे को अच्छा इंग्लिश स्पीकिंग, अच्छा से स्पोकन इंग्लिश मेरे को अच्छा करना है कि नहीं। बहुत जन का प्लानिंग होता है कि नहीं कि स्पोकन इंग्लिश मेरा अच्छा हो। तो ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है पर अर्जेंट नहीं है, ये धीरे धीरे काम सब होगा कि आज हम थोड़ा वर्ब सीखेंगे, कल थोड़ा वर्ड बनाना सीखेंगे, परसों सेंटेंस बनाना सीखेंगे, इस तरह से धीरे धीरे हम इंग्लिश सीखेंगे। ये क्वाड्रेंट 2 में आता है। क्वाड्रेंट 2 में क्या आता है, इंटरप्शन टेलीफोन कॉल्स। जैसे सोचिए आप सो रहे हैं, ठीक है, रात को 10 बजे सो रहे हैं, कल एग्जाम है आपका, ठीक है, कल एग्जाम है, आप सो रहे हैं, सो आपको नींद ऑलमोस्ट आ ही चुका है,
तब दोस्त आपका कोई दोस्त फोन करके बोलता है, अरे भाई बताओ तो कल कौन सा सब्जेक्ट का एग्जाम है, अभी हम पढ़ने बैठेंगे। तो ये क्या है, ये अर्जेंट है कि नहीं उसके लिए, तो वो क्या पढ़ेगा। पर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो तो और भी किसी से बात करके पूछ सकता था ना, वो आपको फोन करके डिस्टर्ब कर रहा है। आप भी रात को सोचिए, आप अलार्म लगा के सोए हैं कि 4 बजे उठ के बाकी सिलेबस हम पढ़ेंगे, अब रात में आधा पढ़ लिया, सुबह थोड़ा रट्टा मारेंगे, माथा में लोड करके चले जाएंगे, वहां पे उल्टी कर देंगे कॉपी में। तो आप सोच, फिर फोन का कॉल बजा, आप सोच रहे अलार्म इतना जल्दी बज गया, देखे कि कोई दूसरा मेस से कोई फोन किया है, थर्ड क्लास ये क्वेश्चन सुनेंगे, आपको कितना गुस्सा आएगा। ये सब हो गया अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट। उसी तरह से हो गया कि जैसे कुछ एक्टिविटी हुआ, जैसे कोई गेस्ट आ गया, बोला जाके ये कर दो वो कर दो। जैसे कोई गेस्ट आया, बोला थोड़ा मेरे को यहाँ पे घुमा दो, थोड़ा मेरे को निक्को पार्क घुमा दो, थोड़ा मेरे को यहाँ पे कोलकाता में आता है तो कोई दोस्त आता है अचानक, वो बोलेगा थोड़ा निक्को पार्क घुमा दो, थोड़ा विक्टोरिया मेमोरियल घुमा दो। आप सोचता रहे हम खुद ही विक्टोरिया मेमोरियल अभी तक नहीं घूमे, तुमको क्या घुमा देंगे, चलो आप क्या करते हैं। तो ये सब हो गया अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं है। तो ये सब चीज हम लोग जितना मिनिमाइज करेंगे उतना हमारा टाइम सेव होगा। उसके अलावा नॉट अर्जेंट और नॉट इम्पोर्टेंट क्या क्या है, अनइम्पोर्टेंट मेल, isn't activities, time wasters, useless phone calls। जब बहुत जन होता है कि उसको लगता है कि 6:30 से 8:30 अभी 6:30 बज गया है, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, घूमने जाने का भी मन नहीं कर रहा है, तो वो क्या करता है, कॉन्टेक्स्ट में देखता है कि किसके साथ हम थोड़ा बात कर सकते हैं। अरे नहीं, इसका तो ये तो अच्छा से बात नहीं करता, हाँ ये है ये खुद भी मतलब वेस्ट है, इसका भी कुछ काम नहीं होता है, मेरा भी कुछ काम नहीं होता, चलो इससे बात करते हैं। 2 घंटा 3 घंटा 6:30 से 9:30 बजा देते हैं, हम लोग करते हैं कि नहीं। जैसे प्रैक्टिकल टाइम वेस्टर्स है, प्रैक्टिकल टाइम वेस्टर्स, तो ये सब हम लोग को नहीं करना है। यूजलेस फोन कॉल, कुछ भी एक्टिविटी कर रहे हैं उसका कुछ है ही नहीं, मतलब पबजी उबजी में पता नहीं क्या क्या चीज में टाइम पूरा एकदम बर्बाद कर देते हैं हम लोग। उसके बाद बोलते हैं आप खेलते हैं ना, नहीं खेलते। हाँ, जिन लोग नहीं खेलते हैं दे आर इन सेफ जोन, जो खेलते हैं मतलब जीवन का टाइम पार हो जाएगा। तो ये है। अब देखिए, अब देखना चाहिए, देखिए अब जैसे 4 क्वाड्रेंट है, तो हमेशा हम, तो आप लोग को क्या लगता है कौन सा क्वाड्रेंट सबसे अच्छा क्वाड्रेंट है? सेकंड क्वाड्रेंट इज बेस्ट क्वाड्रेंट। इसलिए सेकंड क्वाड्रेंट को बोलते हैं कि क्वाड्रेंट ऑफ क्वालिटी, इसमें सब कुछ क्वालिटी चीज आता है। तो आप जैसे देखिएगा, जो भी लड़का अच्छा रिजल्ट करता है, जो भी लड़का को अच्छा जॉब मिलता है, जो भी लड़का गेट क्रैक ये सब क्रैक करता है, उसका प्लानिंग हमेशा किस में रहता है? क्वाड्रेंट 2 में रहता है, क्योंकि उससे क्वालिटी डेवलप होता है, उससे कैरेक्टर डेवलप होता है, उससे एथिक्स वैल्यूज ये सब डेवलप होता है। इसलिए क्वाड्रेंट 2 को बोला जाता है सत्व गुण का क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है? सत्व गुण, मोड ऑफ गुडनेस क्वाड्रेंट। अब जो अर्जेंट और इंपॉर्टेंट क्वाड्रेंट 1 है, वो क्या है? क्वाड्रेंट ऑफ एक्शन, तुरंत करना है, ये एक्शन लेना है हम लोग को, अभी ये करना है वो करना है। अचानक से पानी का नल खराब, नल टूट गया है, फोर्स से पानी गिर रहा है, आपको तुरंत जाके नल खरीद के उसको फिक्स करना है कि नहीं? उसी तरह जैसे आपका मेन गेट, एंट्री का जो गेट है वो टूट गया है, उसको आपको तुरंत फिक्स करना है, क्योंकि नहीं तो आपको ताला किसने मारेंगे, चोर घुस जाएगा। ये सब क्विक एक्शन का काम है, ये क्वाड्रेंट 1 में आता है। क्वाड्रेंट 3 है क्वाड्रेंट ऑफ डिसेप्शंस। डिसेप्शंस मतलब एक तरह का बोलते हैं इंटरप्शन बोल सकते हैं, कि आपका जो प्लान है उसको इंटरप्ट करेगा बार बार, कोई भी कुछ भी ये करेगा वो करेगा। तो ये सब क्वाड्रेंट 3 है। क्वाड्रेंट 4 है क्वाड्रेंट ऑफ वेस्ट। ये क्वाड्रेंट 4 में आप कुछ भी करेंगे, उसका आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ नहीं है, वो करना नहीं करना, उसका कुछ भी वैल्यू नहीं है, उसका कुछ भी रिजल्ट नहीं है, वो मतलब जस्ट टाइम वेस्टर है कि नहीं? जैसे कुछ रहता है कि आप मूवी देख रहे हैं, अचानक से कुछ ऐड है, मूवी के बीच में ऐड की तरह है, जो लोग देखना नहीं चाहते फिर भी करेंगे, भी देख के टाइम वेस्ट करना होता है। तो 4th क्वाड्रेंट इज लाइक पूरा मूवी के अंदर जो एडवर्टाइजमेंट है वो क्वाड्रेंट 4 है, जिसको हम लोग को एलिमिनेट करना है, पार कर देना है, फॉरवर्ड फास्ट फॉरवर्ड कर देना है। अब हम लोग को जानना है कि यहाँ से जैसे पता चल रहा है हम लोग को कि क्वाड्रेंट 3, क्वाड्रेंट 1 और क्वाड्रेंट 2 में हम लोग रहेंगे। अगर क्वाड्रेंट 2 में कुछ काम नहीं हो रहा है तो एटलीस्ट क्वाड्रेंट 1 में हम लोग काम करेंगे। पर क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 मेनली टाइम वेस्टर है। तो हम लोग को जानना चाहिए कि क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4 में क्या क्या आता है। ठीक है, अब देखिए क्वाड्रेंट 2, 3 और 4 में क्या है? नेवर सेटिंग गोल्स और सेटिंग गोल्स एंड नॉट स्टिकिंग टू देम। मतलब क्या क्वाड्रेंट 3 और 4 में किन लोग रहता है? जिनके जीवन में कुछ गोल नहीं है, और कभी अगर गोल बनाते भी है तो कभी स्टिक नहीं कर पाते हैं। जैसे आप देखें कुछ लड़का रहता है, वो हर दिन रूटीन बनाता है,
देखें कुछ कुछ लड़का रहता है हर दिन रूटीन बनाएगा, वो आज बना लिया कि कल सुबह 6 बजे उठेंगे, 10 फिर 6 से उठ के 6:30 से फिर पढ़ने बैठेंगे, 6:30 से 8:30 पढ़ेंगे, फिर 8:30 से थोड़ा योगा करेंगे, फिर खा के कॉलेज जाएंगे, कॉलेज से आके थोड़ा सोएंगे, फिर थोड़ा दोस्त से बात करेंगे, फिर पढ़ाई करेंगे, रात में डिनर करेंगे, सो जाएंगे, फिर सो के उठता है और सुबह 9 बजे। जब 9 बजे उठता है उसको पता चल जाता है कि ये रूटीन आज मेरा से फॉलो नहीं होने वाला, खत्म। फिर रात को फिर से वो रूटीन बनाता है कि अगले दिन हम सुबह 7 बजे उठेंगे, 7 बजे उठ के वो 1 घंटा पीछे करता है, फिर से वो 9 बजे उठता है। इसी तरह से क्या था, फर्स्ट बहुत जनता है कि गोल कभी बनाता ही नहीं है, वो पूरा मतलब क्या है एकदम स्पॉट में डिसीजन लेगा। सोना कब है आपको, जब नींद आएगा तब सोएंगे, कुछ कुछ ऐसे आंसर देता है। सोना कब है, वो तो नहीं सोचे कब सोएंगे, जब नींद आएगा तब सो जाएंगे, जब फेसबुक मेरा हो जाएगा, जब व्हाट्सएप हो जाएगा। कुछ कुछ रहता है कि प्लान करते हैं कि अरे मेरे को 10 बजे सोना ही है, पर सो नहीं पाते हैं। तो दोनों में डिफरेंस है, एकदम ट्राई कर रहा है पर हो नहीं पा रहा है, और एकदम ट्राई ही नहीं कर रहा है। तो ये दोनों क्वाड्रेंट 3 और 4 में आ रहा है, टाइम वेस्टर है, क्योंकि वो स्टिक देखिए आप एक तो रूटीन बना रहे हैं, आप उसमें स्टिक नहीं है, इसका मतलब क्या, आप तो टाइम वेस्ट कर रहे हैं ना। आपको 6 बजे उठना है, आप उठ रहे हैं 9 बजे, तो 3 घंटा आप एक्स्ट्रा सोए, क्या है, टाइम वेस्ट। कि बॉडी को 6 घंटा सोने से इनफ है, 6 के घंटा 12 घंटा सोइए, बॉडी तो सोएगा ही बेटा, उसका क्या है। आप सोचिए तो लेबर रखे हैं 300 रुपया देके, उससे क्या, वो बोला हम 6 घंटा काम करेंगे, वो मैक्सिमम 6 घंटा काम करेगा। अब उसका उससे आप काम नहीं कराइए, उसके लिए अच्छा है वो तो बैठा रहेगा, 1 घंटा भी काम मत कराइए। उसी तरह से बॉडी है, मिनिमम 6 घंटा उसको नींद चाहिए, दे दीजिए। अब 6 से आप ज्यादा दीजिए, बॉडी लेगा, पर उसको जरूरत नहीं है, वो उसका 12 घंटा 14 घंटा सुलाइए, उसमें क्या है कि नहीं। बहुत जन तो वीकेंड का दिन ही नहीं देखता है कि नहीं। जब छुट्टी का दिन में दिन कब होता है वो देखता है, उधर दोपहर देखता है। ब्रेकफास्ट कभी करा पूछिएगा, बहुत जन होता है कि सैटरडे संडे कभी ब्रेकफास्ट होता ही नहीं है उनका जीवन में। थैंक यू। बाप से दोस्तों हरे कृष्ण, किसी का अनम्यूट हो गया। ओके हाँ ओके अनम्यूट हो गया। तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को कि कौन सा कैसे कैसे हम लोग टाइम वेस्ट। उसके बाद है मूविंग अराउंड एंड सोशलाइजिंग टू मच। सेकंड पॉइंट है, उन लोग क्या होता है जैसे सोशलाइजिंग टू मच, मतलब जैसे आप देखेंगे कॉलेज में कुछ लड़का होता है जो सबको पहचानता है और उसको सब कोई पहचानता है। वो जैसे क्लास में निकला, हाय दिनेश, हाय रमेश, हाय ये टीचर लोग, सर कैसे हैं, मैडम आप कैसे हैं, सिक्योरिटी गार्ड से भैया आप कैसे हैं, सबको पहचानता है और उसको भी सब पहचानता है। तो उसका जब कॉलेज छुट्टी होता है सुबह 12:30 बजे और वो मेस आएगा 1:30 बजे, 1 घंटा सिर्फ हाई हेलो करते करते उसका चला जाता है कि नहीं। प्रैक्टिकल देखे हैं, हम भी ऑफिस में देखे हैं कुछ वो लड़का 5th फ्लोर में काम करे, 6:30 बजे मशीन बंद करके वो निकलते निकलते उसका इतना दोस्त मिलेगा, हाय हेलो, इससे 2 मिनट, उससे 2 मिनट, इससे 2 मिनट, 6:30 बजे छुट्टी हुआ, रूम में आता है 8:30 बजे, 2 घंटा से उसको आने में टाइम लगता है। मतलब 5th फ्लोर से नीचे उतर के थोड़ा सा जाके उसका डॉर्मेटरी है, वहां पे आने में उसको 2 घंटा लगता है। सब कोई उसको पहचानता है, वो सबको पहचानता है। इसको बोलता है टू मच सोशलाइजिंग। पर इससे क्या नेट आउटपुट क्या है, कुछ जीरो है ना। यस देखिए, फ्रेंड आपका बहुत सारा हो सकता है, पर उससे आपको कितना यूटिलाइजेशन मिल रहा है वो आपको सोचना चाहिए। क्योंकि आपको अगर डे एंड में आपको अगर जॉब नहीं मिलता है, डे एंड में अगर आपका लाइफ सक्सेसफुल नहीं होता है, तो वो दोस्त कहाँ काम में आएंगे। आपका बहुत सारा दोस्त है, 4 दोस्त है, बहुत अच्छा है, चारों को इंडियन ऑयल में जॉब मिल गया है, आपको कुछ जॉब ही नहीं मिला है, तो वो दोस्त आपको दोस्त नहीं रहेंगे। फिर ये हमको समझना है, मेरा टाइम मेरा हाथ में है, 24 आवर्स टाइम मेरा गोल, मेरे गोल ओरिएंटेड होना चाहिए। और ठीक है दोस्ती नहीं करना है ऐसा नहीं है, पर सिलेक्टेड दोस्त होना, ऐसा नहीं कि सबके पीछे हम टाइम वेस्ट करेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद है लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, गेटिंग इजीली डिस्ट्रैक्टेड बाय ट्रिवियल थिंग्स। जैसे कैसे होता है, जैसे बहुत जन होता है कि मतलब जिन लोग गुड स्टूडेंट्स होता है ना, तो उन लोग जैसे पढ़ाई कर रहा है, उसका खुद का अगर फोन बजेगा ना, वो फिर भी ध्यान नहीं देगा, वो पढ़ाई में डूबा हुआ रहेगा। उसका खुद का फोन में मैसेज आएगा, व्हाट्सएप आएगा, टी 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 बजेगा, वो ध्यान नहीं देगा। देखिए वो पढ़ाई में बहुत एब्जॉर्ब है। इसका मतलब क्या, हाई लेवल, इसको बोलते हैं हाई लेवल ऑफ कंसंट्रेशन।
उसको पता है हम क्यों पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं। और कुछ रहता है लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन, थोड़ा सा भी कुछ भी होगा उसको लगेगा, उसको हमेशा लगता है कि मेरा मोबाइल ही बज रहा है। बाहर में भी कोई का अगर साउंड आएगा वो अपना मोबाइल खोल करके पता है कि नहीं, मैसेज देखेगा, फेसबुक देखेगा, व्हाट्सएप देखेगा, अरे कहीं क्यों मैसेज नहीं आया, आना चाहिए था, अरे नहीं आया, ठीक है पढ़ लेते हैं थोड़ा। तो इसको बोलता है लो लेवल ऑफ कंसंट्रेशन। उसको हमेशा लगता है कि मेरा ही फोन बज रहा है, मेरा ही मैसेज आ रहा है। तो इसलिए इससे बचने का उपाय है, हमेशा जब पढ़ने बैठेंगे फ्लाइट मोड ऑन करके पढ़ने बैठिए। पढ़ाई हो जाएगा, फ्लाइट मोड ऑफ कर दीजिए, नहीं तो आप कंसंट्रेशन को कभी भी कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकेंगे, उसको रीगेन नहीं कर सकेंगे। उसके बाद ट्राइंग टू डू मोर देन वन थिंग्स एट ए टाइम, ये भी आप लोग सोच सकते हैं। बहुत समय होता है पढ़ रहे हैं पर सोच रहे हैं अरे सब्जी मसाला खत्म हो गया है, गरम मसाला खत्म हो गया, अरे मेरे को तो सुबह क्या क्या लाने बोला था, हम क्या क्या नहीं लाए। उसके बाद आप पढ़ रहे हैं, ब्रेन में चल रहा है कि जियो का प्लान 297 में कितना है, बीएसएनएल तो सस्ता हो गया है, कौन सा प्लान हम लगाए। दो चीज एक साथ कभी भी नहीं हो सकता है। अगर दो चीज कर रहे हैं इसका मतलब क्या, आपका पूरा टाइम वेस्ट हो रहा है कि नहीं। सोचिए आप पढ़ाई कर रहे हैं, फिजिक्स पढ़ने बैठे, आइंस्टाइन का थ्योरी पढ़ रहे हैं, माइंड में आपका चल रहा है कि कहाँ पे क्या हो रहा है, यूक्रेन में किसके साथ झगड़ा हो रहा है, रशिया में क्या हो रहा है। 2 घंटा आप पढ़ लिए, पढ़ने के बाद आपका समेशन करिएगा, i = 0 to infinity = 0 रिजल्ट आएगा। कि 2 घंटा पढ़े हैं पर दिमाग आपका पढ़ाई में तो था ही नहीं, कंसंट्रेशन कहाँ पे था, यूक्रेन में था, रशिया में था। तो आपका नेट आउटपुट क्या होगा, आप रशिया यूक्रेन का कुछ भला नहीं कर पाए, पढ़ाई भी कुछ नहीं कर पाए। जैसे बहुत सारे इस्कॉन डिवोटीज आप देखिएगा, नेट पे भी आपको मिलेगा कि जो यूक्रेन में रशिया में झगड़ा हो रहा है उनको बहुत हेल्प कर रहे हैं, उनको कैंप लगा रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं। तो दे आर प्रैक्टिकली हेल्पिंग अदर्स और वी आर थिंकिंग आवरसेल्फ, वी आर नॉट एबल टू हेल्प अदर्स एंड वी आर नॉट एबल टू स्टडी आवर पार्ट। तो हम लोग क्या, दोनों साइड से हम लोग लूजर है, उधर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं, अपना पढ़ाई भी नहीं कर रहे हैं, मतलब पूरा टाइम वेस्ट। इसलिए जब पढ़ने बैठेंगे कंसंट्रेशन शुड बी इनटू द स्टडी। जब अगर न्यूज सुनना है, न्यूज देखना है, देन हम लोग यूक्रेन के बारे में सुनेंगे, सोचेंगे। जब पढ़ाई करेंगे तब सिर्फ पढ़ाई करेंगे, देन वी आर इन क्वाड्रेंट 1 और 2, अदरवाइज वी आर इन 3 और 4। उसका गेटिंग इन्वॉल्व इन एवरीथिंग, थिंकिंग, नथिंग कैन मूव विदाउट मी। बहुत जन होता है, ये भी देखेंगे कि वो सोचता है मेरा डिसीजन अगर हम नहीं देंगे तो कुछ भी काम होने वाला नहीं है। कुछ भी, जैसे मेस में भी बहुत समय होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होगा, 1-2 जन रहेगा जिसको सब चीज में मतलब इन्वॉल्व होना है, होता है कि नहीं। जैसे कुछ भी कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम हुआ, वो जाके इन्वॉल्व हो जाएगा, अरे दिखा हम कर देते हैं। प्लम्बिंग का कुछ पाइप फट गया, वो जाके दिखा सोल्डर हम कर देते हैं। वो देखा गया सब काम में वो इन्वॉल्व हो गया, कुछ खुद का कुछ हुआ ही नहीं। उसका रात को 11 बजे फिर वो सोच रहा है कि अरे मेरा ये सब तक हुआ ही नहीं, मेरे को तो कपड़ा धोना है, मेरे को ये करना है, दोस्त से बात करना था, उसको कोई बोला नहीं है पर वो खुद चला गया है। बहुत जन देखिएगा कि मेस में खाना बनाने वाला है, मेस का खाना बनाने वाला वो बैठा हुआ है, मेस का लड़का आगे खाना बना, घाटो तुमको नहीं आता, हम दिखाते आलू कैसे फ्राई करते, अरे मसाला आपको क्या देते दीजिए, हम दिखाते कैसे मसाला देते, और हर दिन ऐसे करते हैं। जिसका काम उसी को करना चाहिए, सबका काम अलॉटेड है, डिवाइडेड है। सो जिसका जो सेवा है, जिसका जो काम है उसको वो करना चाहिए। अगर दूसरा का काम, आप सोचिए जो हाई कोर्ट का जो जज है, वो अगर क्लर्क का काम करेगा तो जज का काम कौन करेगा, है कि नहीं, सही है कि नहीं। नहीं, जज एडवांटेज में लग सकते, जज अगर सोचिए, जज अगर क्लर्क का काम करेगा तो जज को क्लर्क का भी काम करना पड़ेगा, जज का भी काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। हाँ, क्लर्क का सुविधा हो जाएगा, क्लर्क का सुविधा हो जाएगा, क्लर्क का सुविधा हो जाएगा, पर जो जज है उसका कुछ सुविधा नहीं है। हाँ, महीना में मिल जाएगा। तो ये सब इसलिए देखिए, मेन पॉइंट है हम लोग को समझने का यहाँ पे कि जिसका जो काम है उसको वो काम करना चाहिए। अगर ये बात हमेशा याद रखिएगा, हम अगर जहाँ पे जरूरत नहीं है वहां पे भी जाके अपना अगर टांग लड़ाएंगे, अपना टाइम देंगे, तो मेरा काम कोई करने वाला नहीं रहेगा। पर ठीक है, ये बात हमेशा समझना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, कहीं पे पार्टी हो रहा है, गाना वाना बज रहा है, आप सोचते हैं हम भी जाके थोड़ा डांस करके आ जाते हैं, थोड़ा आप हाथ करके आ जाते हैं, पर तो आपका जरूरत नहीं है। आप यदि पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई कीजिए, तो आप उधर टाइम देंगे, इधर फिर आपका टाइम कम देगा, है कि नहीं। बहुत जन होता है असाइनमेंट लिखने बैठा है, उसका 3 घंटा का असाइनमेंट लिखने का है, तो 8 बजे बैठा, 11 बजे वो खत्म कर देगा। 8 बजे जब बैठा तब देखा कि कुछ सोचिए कहीं पे कहीं जाना है, ठीक है, दो जन फिक्स हुआ कि मेस जो मैनेजर है वो बोला कि आप 2 जन जाके ये
बाइक ले जाइए मेरा, आप जाके लेके आइए। आप सोचिए असाइनमेंट लिख रहे हैं, आपको सुनाई दिया कि 2 जन बाहर जा रहा है, आपको लगा रहे बाइक का चाबी भी मिल रहा है, तो बाइक चलाना अच्छा लगता है, बंद किए बाइक, बोले दीजिए दीजिए हम कर देंगे, 2 जन जरूरत नहीं है, बाइक लिए चले गए, 2 घंटा में पूरा बाजार करके लाए, फिर खाना वाना खाए, फिर आपको 11 बजे तक देखे कि आपको कुछ असाइनमेंट लिखना शुरू ही नहीं हुआ, फिर आप 11 बजे उठे, लिख रहे हैं, लिखते लिखते लग रहा है लिख रहे हैं पर आंख बंद करके सो रहे हैं, फिर आपको पता चल जाता है अरे कुछ हुआ ही नहीं, फिर लिखते हैं। तो ऐसे क्या होता है, हम लोग का पूरा प्लानिंग चौपट हो जाता है। इसलिए माइंड योर ओन बिजनेस क्यों बोलते हैं हमेशा, क्योंकि अगर आप अपना दूसरा का बिजनेस में माइंड देंगे तो आपका बिजनेस में कौन माइंड देगा, है कि नहीं। आप अगर दुकान खोले हैं अपना, सोचिए आप अपना ग्रोसरी का शॉप खोले हैं और दूसरा का दुकान का जाके कस्टमर को आप सामान दे रहे हैं, तो प्रॉफिट आपको मिलेगा कभी, समझ रहे ना। सोचिए आप अपना ग्रोसरी का शॉप खोले यहाँ पे, अब बगल में तो इलेक्ट्रिक का शॉप है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक का शॉप का मालिक देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि उसका दुकान में भीड़ हो गया है, आप जाके उसको मदद कर रहे हैं और आपका दुकान में कस्टमर आके भाग जा रहा है, तो उसका प्रॉफिट वो ले लेगा। आपका पूरा आप डेढ़ में देखिए सारा दिन काम भी किए और आपका पॉकेट में कुछ पैसा भी जमा नहीं हुआ। इसलिए अपना रूटीन पहले फिक्स करना चाहिए कि मेरे को कैसे पढ़ाई में इंप्रूवमेंट होगा, मेरे को कैसे जॉब मिलेगा। इसलिए इस एक्चुअली ये सेल्फिशनेस नहीं है, ये एक्चुअली हमारा गोल ऑफ लाइफ है कि नहीं। कॉलेज अगर बहुत जन सोचता है तुम खुद का ही पढ़ाई करता है, तुम खाली खुद के बारे में सोचता है, सेल्फिश, तो ठीक है। अगर कोई बोलता है नहीं आई एम सेल्फिश, क्योंकि अगर आपको जॉब नहीं मिलेगा, आपको अच्छा करियर नहीं मिलेगा, तो नो वन विल बॉदर अबाउट यू, राइट। इफ यू डोंट हैव a good job at the end of your semester, then that friend who is saying that you are selfish, he hardly bother about you. तो सबको अपना नैया खुद से पार लगाना है। नेक्स्ट है मेकिंग टू मेनी पर्सनल फोन कॉल्स रेगुलरली। जो हुआ इससे बात कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं, ठीक है, बहुत सारा होता है, कस्टमर केयर से बात कर लेते हैं थोड़ा, तो अलग अलग प्रॉब्लम होता है। नॉट डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग पीक एनर्जी आवर्स। जैसे क्या होता है, ये भी एक तो चीज है, जैसे अगर आप जैसे मेडिटेशन है या स्पिरिचुअल जो काम है वो मॉर्निंग टाइम में, अर्ली मॉर्निंग में अच्छा होता है। तो कोई अगर अर्ली मॉर्निंग में स्पिरिचुअल काम करेगा तो उसका ज्यादा रिजल्ट मिलता है। उसी तरह से सुबह 9 बजे के बाद से जो टाइम है शाम तक का, ये टाइम जो है वो मोड ऑफ पैशन का रहता है। मोड 9 या 10 से लेके शाम को 6 बजे तक ये जो है मोड ऑफ पैशन रहता है। सुबह 9 बजे तक गुडनेस, सत्व गुण का समय रहता है। तो सत्व गुण में क्या, हम लोग का जो इंटरनल डेवलपमेंट है, जैसे गुड कैरेक्टर, गुड वैल्यूज, कुछ स्पिरिचुअलिटी करना, भगवान को प्रे करना, भगवान को प्रणाम करना, भगवान के बारे में सुनना, भगवान का नाम जप करना, ये सब हम लोग को अर्ली मॉर्निंग करना चाहिए, क्योंकि उस समय सत्व गुण रहता है। जैसे कोई को सो के उठ के लगता है कि कोई लड़की के साथ हम घूमने चले जाएंगे, फील आता है, ऐसा नहीं आता है कि सुबह मोड ऑफ गुडनेस है, सत्व गुण रहता है। उस समय लगता है कि थोड़ा कीर्तन सुने, थोड़ा कहीं पे, इसलिए बहुत जन देखेंगे सुबह सुबह ओम नमः शिवाय कीर्तन लगा देता है दुकान में, ठीक है। तो इसलिए सुबह का टाइम है, स्पिरिचुअलिटी माइंड जो है एब्जॉर्ब करता है। आप जितना स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस करेंगे आपका माइंड सुबह के टाइम में एब्जॉर्ब करेगा। जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, जितना धूप उगेगा, 11 बजेगा, 10 बजेगा, 11 बजेगा, मोड ऑफ पैशन अंदर में बढ़ते जाता है। मोड ऑफ पैशन मतलब क्या, क्रिएशन, कुछ भी नया कुछ करना है तो मोड ऑफ पैशन चाहिए। बोलता नहीं यू शुड बी पैशन मैन, पैशन मतलब कुछ करके दिखाना है। तो उस समय अगर आप पढ़ाई करेंगे तो कुछ करके दिखा सकते हैं, समझ आ रहा है। इसलिए जो लोग 11-12 बजे तक सोता है वो एकदम सही नहीं है। सोने का टाइम सुबह 6 तो 5-6 बजे तक सबको उठ जाना चाहिए। और जिन लोग स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो 4 बजे 4:30 बजे उठ जाना चाहिए। तो 9 बजे से आप पढ़ाई करिए। तो पीक, इसीलिए बोला जाता है नॉट डूइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क ड्यूरिंग पीक आवर्स। बहुत सारे हम लोग पीक आवर्स इंपॉर्टेंट काम नहीं करते, ये हमारा वेस्ट है। और लाइकिंग टू हेल्प अदर्स और टू फील इंपॉर्टेंट अबाउट वनसेल्फ। बहुत समय होता है ना कि हम लोग सोचते हैं कि हम लोग दूसरा को हेल्प कर रहे हैं, होता है कि नहीं। जैसे कोई सब चीज में हेल्प करते हैं, इसको करता है, इसका प्रॉब्लम हुआ वहां चला गया, इसका प्रॉब्लम हुआ वहां चला गया। एक्चुअली क्या, वो अपने आप को ग्रेट समझना चाहता है कि देखो हम कितना ग्रेट है, सब कुछ हम कर सकते हैं। तो अब क्वेश्चन आता है कि तो आदमी फिर टाइम वेस्ट करता क्यों है, मतलब क्या क्या कारण है। मतलब पहले का, इसके पहले जो पॉइंट हम डिस्क्राइब किए, ये मतलब किस तरह से टाइम वेस्ट करता है, ठीक है। अब है कि क्यों टाइम वेस्ट करता है और क्या क्या कारण है। देखिए, फर्स्ट है फियर ऑफ हर्टिंग पीपल और टू से नो। तो बहुत जन बोला चल ना यार थोड़ा मूवी देख के आते हैं, आपको अंदर से लग रहा है कि आपको पढ़ाई करना है, आपको लग रहा है कि मूवी देखना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, पर फिर भी हम लोग ना नहीं बोल सकते। बहुत समय लगता है ना बोलेंगे तो वो बुरा मान जाएगा, या दोस्त है मेरा कैसे ना बोल सकते हैं।
उसके बाद एक्सेप्टिंग अनरियलिस्टिक डेडलाइंस। जैसे बहुत समय होता है कि अनरियलिस्टिक डेडलाइन मतलब जो करना पॉसिबल नहीं है, पर वो सोचते हैं कि एक दिन में हम लोग कर लेंगे। जैसे बहुत समय होता है कि एक दिन में हम ये काम सीख जाएंगे, एक दिन में सब कुछ कर लेंगे, या ऐसा करके बहुत कुछ कुछ हो सकता है ऐसे से प्रॉब्लम। तो फिर मेन पर क्या कंक्लूजन है कि फोकस ऑन क्वाड्रेंट 2 in organizing things, tasks and people, putting first things first for generation of time management. तो क्वाड्रेंट 2 इज बेस्ट क्वाड्रेंट, जिसमें हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके बाद देखिए क्या पॉइंट है, वेरियस टाइम मैनेजमेंट टेक्निक्स। तो टाइम मैनेजमेंट क्यों करना है हम लोग तो समझ गए, अब कैसे करना है। पहला क्या है, सेविंग टाइम। अगर टाइम सेव करेंगे तो वो टाइम को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे बोलते नहीं कि आज मतलब टुडेज सेविंग्स इज टुमारोज अर्निंग। जैसे आज अगर आपके पास बहुत पैसा अगर सेविंग्स रहेगा तो टुमारोज अर्निंग मतलब क्या, फिर अगले दिन आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है, वो आपका एसेट हो जाएगा। उसी तरह से अगर आप टाइम को सेव करेंगे तो उसका मतलब आपका वो टाइम एक्स्ट्रा हो गया, उसको आप अलग जगह यूटिलाइज कर सकते हैं। उसका बाद अवॉइड वेस्टिंग टाइम। तो हम लोग अभी 7:40 हो रहा है तो 8 बजे खत्म कर देंगे सेशन। उसके बाद अवॉइड वेस्टिंग टाइम। उसके बाद टाइम कॉन्शियस, नोइंग योर टाइम, डेलीगेट। तो ये अलग अलग पॉइंट है, तो अब इसका डिस्क्राइब करेंगे। सेविंग टाइम जैसे होता है, कैसे टाइम सेव करते हैं, बी ए मैनेजर डोंट बी ए प्रोड्यूसर। इसका मतलब क्या है, जैसे सोचिए हम अब जैसे बोले हैं कि आपको कि आपका क्या नाम है, आशीष। तो आपका नाम हम बोले आशीष आप एक काम कीजिए, आप ये काम कर, ये जगह थोड़ा क्लीन करा दीजिए और बाजार से कुछ सामान मंगवा दीजिए, ठीक है। और आप थोड़ा कुक को भी बोलिए ये खाना बना देगा, ये लिए आपको दो जन 3 जन आपको दे दिए, आप इनसे काम करा दीजिए, इसको क्लीन कर दीजिए। तो वो क्लीन नहीं कर रहा, आप ही क्लीन करना शुरू करें। फिर आप पूरा क्लीन किया, फिर जिसको बाजार भेजना था उसको बाजार, वो बोला भैया मेरे को तो नहीं पता कितना काम होता है, क्या सामान होता है, तब कुछ नहीं आता, ठीक है 2 बैग दो, हम जाते हैं। इसका मतलब क्या, हम लोग मैनेजर नहीं होके अगर खुद से काम करेंगे तो फिर वो टाइम का वेस्ट है। मैनेज करना और खुद से करना, देखिएगा सैलरी किसको ज्यादा मिलता है, क्लर्क को मिलता है या मैनेजर को मिलता है? मैनेजर को मिलता है। और काम कौन करता है, मैनेजर करता है या क्लर्क करता है? क्लर्क करता है। तो फिर देखिए क्यों मिलता है मैनेजर को ज्यादा पैसा, क्योंकि वो स्मार्ट वर्क करता है, वो क्वालिटी वर्क करता है। क्वांटिटी वर्क कौन करता है, लेबर लोग क्वांटिटी वर्क करता है, सारा दिन खटेगा, इतना बड़ा क्वांटिटी का काम करेगा, पर क्वालिटी या वो मैनेजमेंट उसके अंदर नहीं है। कंपनी में भी देखिए बड़ा जो कंपनी का जो होता है, तो उन लोग क्या करते हैं, उन लोग सिर्फ छड़ी चलाएगा, मैनेज करेगा सब कुछ, उन लोग को करोड़ों में पैकेज मिलता है। और जो एक्चुअली काम करता है उसको बहुत कम पैसा मिलता है। वो बोलेगा अरे हम लोग तो काम कर रहे हैं, मेन पैसा तो हम लोग को काम से मिल रहा है, सैलरी सब मैनेजर लोग को मिलता है। वो लोग क्या करते हैं, हम लोग तो कुछ करता ही नहीं है। तो इसलिए मैनेजर बनना है हम लोग को लाइफ में, लेबर नहीं बनना है, मैनेजर बनना है, मैनेज करना है। मैनेज कैसे करेंगे, डू करेक्ट थिंग इन करेक्ट टाइम। आपका जो टाइम है उस टाइम में करेक्ट थिंग को करना है। ऐसा नहीं कि मेरा टाइम है ये करने का है, हम उसका भी काम कर रहे हैं, इसका भी काम कर रहे हैं। डोंट बिकम ए प्रोड्यूसर, बिकम ए मैनेजर। क्योंकि आप लोग सब इंजीनियर बनने जा रहे हैं। इंजीनियर मीन्स काइंड ऑफ मैनेजर। आप लोग जब एक जन से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है तो आप जाके क्या वहां पे फेस के साथ दूसरा बल्ब का फेस जोड़ेंगे? जैसे बहुत जन लोग घर जाते हैं, अरे बेटा तुम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ा, थोड़ा फैन थोड़ा ठीक कनेक्ट कर दो ना, थोड़ा लाइट लगा दो ना। तो इंजीनियर का वो सब काम है क्या? वो तो ITI भी कर सकता है ना। तो हम लोग क्या बीटेक पढ़ रहे हैं, फिर बीटेक पढ़ के इतना पैसा खर्चा करके 4 साल में 1 साल में तो ITI का डिग्री मिल जाएगा। और ITI बहुत अच्छा होता है, आपको लाइट फैन पूरा घर का वायरिंग कर देगा, बहुत अच्छा मीटर उटर लगा देगा सब कुछ। तो व्हाई वी आर रीडिंग बीटेक इंजीनियरिंग? बिकॉज वी वांट टू बिकम ए मैनेजर। हम लोग को मैनेजर बनना है। तो पूरा इंडस्ट्री का एक तो बीटेक इंजीनियर के अंडर में कम से कम 150 ITI इंजीनियर रहता है, कम 50 डिप्लोमा इंजीनियर रहता है। तो 150 ITI प्लस 50 डिप्लोमा, 200 इज इक्विवेलेंट टू 1 बीटेक इंजीनियर। समझ रहे? इट इज द रोल्स एंड रिस्पांसिबिलिटी ऑफ बीटेक इंजीनियर। अब बीटेक इंजीनियर जाके फेस के साथ फेस जोड़ रहा है न्यूट्रल, तो देन तो उसका फिर वैल्यू घट जाएगा ना, है कि नहीं? समझ रहे? तो मैनेजर मींस उसको 200 जन को देके काम कराना है, ये नहीं कि हमको जाके खुद से काम करना है, खुद काम कराना है। दैट इज द टाइम मैनेजमेंट। तब जाके आप सारा काम को एक साथ कर सकेंगे। बिकॉज आप लोग सब फ्यूचर में जॉब करेंगे तो ये आर्ट आप लोग को सीखना बहुत जरूरी है। नहीं तो आप जाके
ऑफिस में आप 9:30 बजे तक घुसेंगे, निकलेंगे कब आपको भी नहीं पता चलेगा। तो आप निकलेंगे अगले दिन सुबह 8 बजे, फिर 8 बजे आएंगे, खाएंगे, फिर 9:30 बजे ऑफिस चले जाएंगे। ठीक है। अवॉइड डे ड्रीमिंग। बहुत जन देखिएगा पढ़ने बैठा है, कलम लिया, ऐसे कलम में रखा, फिर सोचने लगा हम अगर कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब मिल जाएगा, 1 लाख रुपया महीना मिलेगा, हम क्या पहला महीना में घर नहीं लेंगे या 2-3 महीना ना, पहले में हम घर नहीं लेंगे, घर पहले रेंट में ले लेंगे। और गाड़ी का शौक है, गाड़ी पहले ही हम खरीद लेंगे। उस समय कौन सा गाड़ी अच्छा हो सकता है, उसके बाद आप सोचेंगे हाँ मम्मी पापा को तो अच्छा घर में शिफ्ट करा देंगे, इतना दिन तो एसी नहीं था, अब एसी भी लगवा देंगे। तो ये सब क्या है, डे ड्रीमिंग है। 2 घंटे तक आप सोचेंगे, 2 घंटा टाइम वेस्ट। इसलिए डे ड्रीम नहीं करना है, डे ड्रीम कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है। 2019 में जिन लोग जो प्लान किया था उसको पता था कि 2020 में कोरोना आएगा, सब उसका उलट पलट कर देगा। इसलिए डोंट डू डे ड्रीमिंग, बिकम प्रैक्टिकल। आज के दिन को अच्छा से जिए, कल क्या होगा उसके बारे में नहीं सोच के आज का दिन हम कैसे अच्छा से यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे सुबह उठ के भगवान को प्रे कर सकते हैं कि भगवान हमको स्ट्रेंथ दीजिए कि आज का दिन हम अच्छा से जी सके, आज का दिन आपको अच्छा से रिमेम्बर कर सके। कल का दिन कल देखा जाएगा। डे ड्रीमिंग करके कुछ बेनिफिट नहीं है, ओनली टाइम का वेस्टेज है। बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग करना, ये बनेंगे वो बनेंगे। फर्स्ट ईयर से बहुत जन सोचता है गेट में हम कौन सा कोचिंग सेंटर पढ़ेंगे। अरे फर्स्ट सेमेस्टर पास करो तुम, देखेंगे बहुत जन होता है फर्स्ट सेमेस्टर से भैया लोग से पूछेगा भैया कौन सा कोचिंग सेंटर अच्छा है, कौन सा कोचिंग गेट का कैसे पढ़े, कौन सा बुक खरीदे। अरे तुम फर्स्ट ईयर में है, अभी फर्स्ट ईयर पास करो, सेकंड ईयर पास करो, थर्ड ईयर से गेट का तैयारी करो। अभी से इतना हड़बड़ी करने का क्या है, तो सब डे ड्रीमिंग है। और एक तो होता है कि जब जैसे फोन कॉल हम लोग करते हैं तो बहुत ज्यादा जितना पूछा जाता है हम लोग उससे ज्यादा बताते हैं। सोचिए जैसे हाँ, कोई पूछेगा कि अरे मेरे पास ये सोचिए बोला कि कुछ एंड जो गैस का टैबलेट होता है, सोचिए पैंडी, वो कोई आपको फोन करके बोला कि भाई बहुत गैस, पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है, गैस हो रहा है, मेरा पैंडी है, पैंडी खा सकते हैं ना गैस में। सोचिए आपको थोड़ा नॉलेज है, तो जिन लोग बहुत ज्यादा एलाबोरेट होता है, टॉकेटिव होता है ना, क्या वो आपको बोलेगा पैंडी, अरे तुम पैंडी तो खाओ, इतना मसाला खाए खाता है, तुमको इतना देखते हैं बाहर खाता है वो खाता है, तुम हमसे ये किया करो वो किया करो। पूरा है ना शास्त्र से, मेडिकल से, प्रैक्टिकल नॉलेज से उसको 1.5 घंटा, आयुर्वेद से 1.5 घंटा तक उसको नॉलेज देगा। और वो यहाँ पे बोल सकता था पैंडी है, ठीक है तुम पैंडी खा लो, थोड़ा अच्छा से पानी पी के तुम सो जाओ, ठीक हो जाएगा। इतना बोल के हो सकता था। वो आपको दुनिया भर का ज्ञान देगा, चाणक्य क्या किए हैं, भागवत जी क्या कहे हैं आयुर्वेद में, वो डॉक्टर क्या कहा है, और उसका बोलेगा कि अरे बाहर रहता है थोड़ा तो उतना ये करना ही पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, ये करो वो करो, यहाँ पे दबाओ, ये दबाओ वो दबाओ। उसको लास्ट में बोलेगा पैंडी खाओ और सो जाओ। तो ये सब हम लोग को, इसलिए ये बहुत जन इस तरह से टाइम को वेस्ट करता है कि अलग अलग तरह से सजेशन देगा जो जरूरत नहीं होता है। बहुत समय हम लोग सोचते हैं कि हम बहुत दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एक्चुअली हम लोग नहीं भी हो सकते हैं। इसलिए हम लोग को अलग अलग तरह से टाइम को जितना जरूरत है टू दी पॉइंट करना है। क्योंकि अभी आप लोग स्टूडेंट है ना, जब आप लोग ऑफिस में चले जाएंगे ना, हम लोग आप लोग को एक तो एकदम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं। जब आप बैठेंगे, आप जब इंजीनियर हो जाएंगे, जब एक तो प्लांट का, एक यूनिट का जब रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगा, तो आपको पर डे आपको 300 से 350 फोन कॉल आएगा, ठीक है, 300 to 400 कॉल्स आएगा आपको। तब आपको समझ में आएगा कि टू दी पॉइंट आंसर किसको बोलना होता है, ठीक है। सोचिए हम कैसे टू दी पॉइंट बोलते हैं वहां पे। सोचिए एक तो प्लांट में आप काम कर रहे हैं, सोचिए हम काम कर रहे हैं और मेरे साथ मेरा एक तो दोस्त, सोचिए उसका नाम कमलेश बोलकर दोस्त है, वो काम करता है, ठीक है। सोचिए हम यहाँ पे ये लाइट एक्सटेंशन है, आप लोग अच्छा से समझिए, ये ला फोन है, फोन के इस पास में हम बैठते हैं, इस पास में कमलेश बैठता है, और एक जो काम है दोनों जन मिलके वो काम संभाल रहे हैं, ठीक है। तो अगर सोचिए कोई मेरे को फोन करके बोलेगा कि हेलो कमलेश है, हम बोलेंगे नहीं कमलेश नहीं है, रख दिए। सोचिए कमलेश यहाँ पे नहीं है, पर कमलेश जो काम कर सकता है वो हम भी कर सकते हैं, क्योंकि हम दोनों जन एक ही प्रोजेक्ट संभाल रहे हैं। पर वो एक्चुअली वो उसको भी पता कि इधर कमलेश नहीं तो नीतीश ये काम कर सकता है, तो वो कमलेश को फोन किया कि मेरे को फोन किया कि कमलेश है, हम बोले नहीं है, फोन को रख दिए। हम पूछ सकते हैं नहीं कमलेश नहीं है, हम तो नीतीश बोले, बोलिए क्या काम है आपको, क्या करना है बोलिए, हम कर देते हैं। नहीं, अगर वो आप बोलेंगे तो आपका 1 घंटा वेस्ट हो जाए। कमलेश को खोजा है, वो नहीं है, बस रख दीजिए। क्या सोचिए कोई बोला हेलो कमलेश है, हम देखेंगे कमलेश अपना सीट पे नहीं है, थोड़ा सा दूर में है, हम उसको बोलेंगे कमलेश सुनो तुम्हारा फोन है, नहीं कमलेश है, हम देखेंगे नहीं है, बस इतना ही करना है।
टू मोर प्रिसाइज, जितना जरूरत है उतना ही करना है, तो आपको बहुत टाइम सेव होगा। ओके तो हम लोग आज का सेशन यहीं पे हम लोग एंड करते हैं। हम लोग आज ये पार्ट 1 है, टाइम मैनेजमेंट का पार्ट 1 है, पार्ट 2 बाकी है। तो पार्ट 2 में और भी आप लोग को टेक्निक बताएंगे कि कैसे हम लोग टाइम सेव कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग का अगर कुछ क्वेश्चन है आप लोग पूछ सकते हैं कि आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ से कुछ क्वेश्चन है कि कैसे मैनेज करना है, क्या करना है। अगर क्वेश्चन नहीं है तो 10 मिनट और आप लोग को टाइम को ट्रैक करने के लिए हम लोगों को कौन टू डू का भी लिस्ट बनाना चाहिए। तो उसको मतलब कि क्या मतलब जैसे कि प्रायोरिटी हो सकता है कि 4 से 5 काम प्रायोरिटी है, उसको क्या मतलब कौन टू डू का लिस्ट बनाने टाइम हमको कौन टू नॉट टू डू बनाना चाहिए। हाँ, पॉइंट्स टू डू लिस्ट जो बनाना है, टू डू लिस्ट आप बना सकते हैं। देखिए जब हम लोग लिस्ट बनाते हैं हम लोग को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है कि एक दिन में हम लोग का प्लान सक्सेसफुल ना हो, ठीक है। 2 दिन 3 बाद 2 दिन 3 दिन भी लग सकता है कोई भी प्लान हम लोग का सक्सेसफुल होने के लिए। तो हम लोग कोशिश करना चाहिए। देखिए हम दो चीज का एग्जांपल दिया हम लोग को। एक तो है कि एक जन प्लान ही नहीं करता है और एक जन प्लान कर रहा है पर उस प्लान उसका सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा है, तो वो इज बेटर। जो प्लान कर रहा है वो आज सक्सेसफुल नहीं हो रहा है पर वो कल सक्सेसफुल हो जाएगा, और जो प्लान नहीं कर रहा उसका वो तो कभी उसका प्लान ही नहीं है कुछ भी, कभी भी सक्सेसफुल। टू डू लिस्ट करेंगे, नोट करेंगे क्या क्या पॉइंट में लैकिंग हो रहा है, ठीक है। जैसे हम लोग क्या होता है बहुत समय हम लोग ऐसा जगह टाइम वेस्ट करते हैं जिसको हम लोग ट्रैक करना बहुत जरूरी है। जैसे बहुत ज्यादा देखेंगे, जैसे कुछ सोचिए रेसिपी का बुक पढ़ रहा है, ठीक है। रेसिपी का बुक पढ़े, पनीर मसाला बनाना सीख रहा है, वो रेसिपी का बुक पूरा पनीर मसाला बनाया, पढ़ा, उसका यूट्यूब से 4-5 वीडियो देखा कैसे पनीर मसाला बनाना चाहिए, उसके बाद कभी वो किचन में घुसा ही नहीं। तो ये क्या है, इतना रेसिपी का बुक पूरा पढ़ लिया, कभी कुकिंग ही नहीं किया, तो पढ़ के क्या फायदा, उसका तो कुछ अंडरस्टैंड हुआ नहीं ना। आप हाउ टू स्विम, आपको तैरना कैसा है उसके बारे में बड़ा बड़ा बुक पढ़ के कुछ फायदा है? बुक पढ़ के आप स्विमिंग सीख सकते हैं क्या? नहीं सीख सकते हैं। ये जो कुछ चीज होता है जो प्रैक्टिकल हम लोग करना है, उसके बारे में डे ड्रीम करके, ज्यादा बुक पढ़ के, ज्यादा अलग अलग चीज करके हम लोग उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये सब पर हम लोग वही सब काम ज्यादा करते हैं, इसी पर हम लोग का टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो अगर हमारा कोई टाइम बचता है तो हमारा वो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में से कौन एक्टिविटीज नहीं, टाइम बचता है तो भी हम लोग को क्वाड्रेंट 2 में यूज करना चाहिए उसको। देखिए क्वाड्रेंट 2 में तो एक्टिविटी है ना, क्वाड्रेंट 2 तो एक्टिविटी कभी खत्म होने वाला नहीं है। क्वाड्रेंट 2 का जो है वो डेवलपमेंट का क्वाड्रेंट है, सेल्फ डेवलपमेंट, वो कभी खत्म नहीं होगा। आप अपने आप को डेवलप करने के लिए यूटिलाइज करिए। जैसे इंग्लिश वीक है, वो स्पोकन इंग्लिश को है, जिसका जैसे पब्लिक स्पीकिंग अच्छा नहीं होता, पब्लिक स्पीकिंग के ऊपर जोर दीजिए। किसी को लगता है कि हमको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, एंजाइटी ज्यादा होता है, तो
सारा मीडियम साइज स्टोन है, और उसके बाद और बहुत सारा क्या है, सैंड है। तो आपको अगर वो फिल करना है तो कैसे करेंगे? पहले अगर सैंड डाल देंगे उसके अंदर, तो उसके बाद आप बड़ा पत्थर डाल ही नहीं पाएंगे, छोटा पत्थर भी डाल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि सैंड के अंदर बहुत बीच में बहुत सारा गैप रहता है। पर सोचिए कंटेनर के अंदर पहले बड़ा पत्थर डाल दिए हैं, उसके बाद छोटा पत्थर डालेंगे तो बड़ा पत्थर के बीच में जो गैप है उसके अंदर छोटा पत्थर सब घुस जाएगा। उसके बाद अगर उसके ऊपर रेत डालेंगे या सैंड डालेंगे तो वो पूरी तरह से मेकअप हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग को जो बड़ा बड़ा काम है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको पहले हम लोग को एग्जीक्यूट करना है। उसके बाद वो अगर एग्जीक्यूट हो जाएगा ना, तो बाकी चीज ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे सुबह आपको जैसे पढ़ाई करना है, आप अगर सुबह उठ के अगर मॉर्निंग दोपहर 12 बजे के पहले 3-4 घंटा पढ़ाई कर लेते ना, तब देखिए आपका पूरा दिन कितना अच्छा से यूटिलाइज होता है। ये कुछ काम रहता है, वो जब तक नहीं करेंगे दिमाग में वही चलता रहता है और वो आपको कुछ करने भी नहीं देगा। जैसे सोचिए आपको सेमेस्टर एग्जाम है, तो आप बहुत नजदीक एग्जाम है और आप सुबह से पढ़ाई नहीं करेंगे अगर, तो आप दूसरा काम भी नहीं कर पाएंगे। आपको कुछ भी करने जाएंगे आपको लगेगा सेमेस्टर एग्जाम है, वो काम कैसे करेंगे, अरे सेमेस्टर एग्जाम है वो कैसे करेंगे। आपको कुछ भी करना, आप कुछ भी नहीं ना, आप कुछ मतलब रिफ्रेश कर सकेंगे खुद को, हमेशा लगेगा कि माइंड में एग्जाम है एग्जाम है एग्जाम है। तो उससे अच्छा सुबह उठ के पढ़ाई कर लीजिए पहले, पढ़ाई करने के बाद फिर आप थोड़ा सा रिलैक्स हो सकते हैं। ओके, गोल सेट कर रहे हैं, कुछ समय उसको फॉलो कर रहे हैं, कुछ दिन फॉलो करना है, कुछ दिन वाले एक ऐसा है कि उस काम करने का मोटिवेशन नहीं है, फिर हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे, लॉन्ग टर्म कंटिन्यू नहीं। इसके लिए क्या बोलते हैं, इसके लिए डिटर्मिनेशन होना जरूरी है, और जिस काम का हम लोग गोल सेट किए हैं वो काम भी उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। इसीलिए हम लोग को क्या मतलब किसी का गाइडेंस में काम करना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग उसका प्लेजर के लिए काम कर सकते हैं। जैसे हम लोग बहुत जन, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, हम जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे कॉलेज में एक सीनियर मतलब एक थे, ऐसे करके वो क्लास देते, स्पिरिचुअलिटी के बारे में क्लास देते थे। तो वो जमशेदपुर में रहते थे, तो बहुत गरीब फैमिली से थे। वो बोलते थे कि हम जब पढ़ाई करते थे तो हम लोग घर में इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं था, बोलता, और उनके पापा बहुत कम पैसा इनकम करते थे, उससे कोई तरह से मतलब चलता था, मतलब ऐसा कि मतलब मच्छर काटता था, मच्छर भगाने के लिए गुड नाइट खरीदने का भी पैसा नहीं था। पर वो उसी तरह से कुछ तो पढ़ाई कर करके इतना अच्छा रैंक लगाया, IIT में उनको चांस मिल गया और उनका नाम पेपर ऊपर में आ गया था। तो फिर वो अच्छा से पढ़ाई किए, तो डेडिक वो मुझे बोलते थे, पढ़ाई करते थे, बोलता कि मम्मी पापा इतना कष्ट करके मेरे को पढ़ाया है, तो आई शुड रीड फॉर देम, आई शुड रीड फॉर देयर प्लेजर। इसलिए क्या बोले, तो देखिए हम लोग जब तक किसी के प्रसन्नता के लिए नहीं करेंगे ना, तब तक हम लोग को डेडिकेशन नहीं मिलेगा। जैसे जब कोई लड़का लड़की से प्यार करता है, तो वो कुछ भी करता है, क्या करता है, उसका गोल क्या होता है, उस लड़की को कैसे हम खुश करें, इसलिए उसको मोटिवेशन मिलता है। सब कुछ में उसको मोटिवेशन मिलता है, नया ड्रेस पेंटिंग करेगा, ये करेगा, फेशियल करेगा, पूरा ग्रूमिंग करेगा। Why? Because he want to make the girl happy, है कि नहीं? उसी तरह से जब और हायर कनेक्शन रहेगा कि I want to make Lord happy, तो ये सबसे बेस्ट कनेक्शन है कि भगवान की प्रसन्नता के लिए ये काम कर रहे हैं। It is the best way to execute any duty। जैसे कोई अगर कुछ खराब नशा वशा करता है या बैड एसोसिएशन करता है, तो उससे कैसे बच सकता है? तो अगर वो किसी स्पिरिचुअल लोग से गाइडेंस ले, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो, भगवान से कनेक्ट हो, गीता पढ़े, तो उसको भी वहां से इंस्पिरेशन मिलेगा। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी होना चाहिए, क्योंकि मेटेरियल एक्टिविटी एक्चुअली उतना रस नहीं है, इसलिए हम लोग को डेडिकेशन नहीं रहता है। जैसे भूख लगता है ऑटोमेटिक खाते हैं हम लोग, तब लगता है डेडिकेशन नहीं है, हर दिन तो डेडिकेशन था हम खाएं, पर आज डेडिकेशन नहीं है, बिकॉज दैट इज द नीड। उसी तरह से डेडिकेशन नहीं आता है, कभी कभी मटेरियल चीज के कारण नहीं आता है, या हम लोग क्यों कर रहे हैं वो एक्टिविटी, वो गोल ओरिएंटेड नहीं है। इसलिए बहुत समय क्या होता है ना, हम लोग अपने प्रसन्नता के लिए काम करते हैं, कुछ होता कि नहीं, ये काम इसलिए करेंगे ताकि मेरे को खुशी मिले, मेरा काम हो जाए, उससे हम लोग को कुड़ियापन ज्यादा आता है कि नहीं। जैसे सोचिए आप पढ़े हुए हैं, मोबाइल घाट रहे हैं, और आपका कोई अगर पास में तुझे कोई इनविटेशन है, छत में से कुछ प्रोग्राम हो रहा है, खाना वाना खिला रहा है, आपसे सेकंड फ्लोर में रहते हैं, 8th फ्लोर की छत में कुछ कोई भी दूसरा फ्लैट वाला कुछ प्रोग्राम कर रहा है, उसमें कुछ अच्छा खिलाएगा, कचौड़ी, जलेबी, थोड़ा दही का लस्सी खिलाएगा। आप सोए हुए हैं, आपको इन्विटेशन मिला है, आपको लग रहा है क्या 2 कचौड़ी खाएंगे, उसके लिए कौन छत में जाएगा, छोड़ो तो नहीं जाएंगे। आपका प्लान तो जाएंगे, पर क्योंकि आपका खुद का खुशी इन्वॉल्व है, तो कभी लगता है अगर नहीं मिलेगा तब भी चलेगा। पर सोचिए आपको और आपका भाई, छोटा भाई है, दोनों ने इनवाइट किया है,
और आप छोटा भाई अकेले नहीं जा सकता है, बहुत छोटा है, तब आपको खुद का इच्छा नहीं भी होगा फिर भी आप छत पे जाएंगे। क्यों है? क्योंकि आपको लगता है मेरे छोटा भाई को हैप्पीनेस मिलेगा, मेरा छोटा भाई खुश होगा अगर खाएगा तो व्हेन, इसलिए आदमी why people are serving, आप देखते हैं ना आदमी क्यों इतना दूसरे को हेल्प करता है, बिकॉज हेल्पिंग अदर्स मेक्स अदर हैप्पी। अगर आप दूसरे को अगर दूसरे के हंसी के कारण बनेंगे ना तो आपको खुद ऑटोमेटिक अच्छा लगेगा।